I request respected chairman of the branch, Sri Neerav Agrawal, and also Sahil Gala, treasurer of the branch, and vice chairman Rinkesh. Request our respected chairman of the branch, Sri Neerav Agrawal, and also vice chairman of the branch, CA Rinkesh and treasurer CA Sahil Gala, to please escort our respected faculty for the day, Sri Girish Ahuja sir, the tax expert, and our CCM from Ahmedabad, CA Purushottam Khandelwal. Have a big round of applause for all of them. Requesting all to please raise for ICI motto. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यति कश्चन एतद्द्वैत 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 एतद्द्वैत. Respected members, when any new committee comes in a branch, they always think that they will do their best. And the same thing has happened, and ICI Ahmedabad branch have received and honored with Best Branch Award for members and students. And for that, I request and welcome our respected chairman of the branch, Sri Neerav Agrawal, young and dynamic, to please welcome all the members over here. Have a big round of applause for Neerav Agrawal. A very good morning to all of you. The most respected tax guru, stalwart, CA Dr. Girish Ahuja sir. Sir, thank you so much for accepting our invitation and agreeing to address the members of Ahmedabad branch with your rich knowledge and rich experience. Sir, this is the kind of flagship event where the members of Ahmedabad branch are eagerly waiting to learn and dissect the finance bill by way of worthy wisdom. We are very fortunate that on just a single phone call, sir has already dedicated his time a day after budget, that is 3rd of February, to the Ahmedabad branch, despite his busy schedule. Sir, thank you so much, sir. I'll request all the members to please welcome Girish Ahuja, sir, with a big round of applause. The Central Council member from Ahmedabad, CA Purushottam Khandelwal, sir, without whose support, not just a single program, the functioning of the branch, all the approvals from the institute would have been difficult for the Ahmedabad branch. For a chairman to have the Central Council member like a Purushottam Khandelwal sir at the Central Council, it's a blessings, because whenever we need any kind of approval, he's just a phone call away, and he ensures that we Ahmedabad branch get the approval as soon as possible. So the Best Branch Award which we Ahmedabad branch deserves and gets is all thanks to Purushottam Khandelwal, because if the approval, the grants and the sanctions from the Central Committee doesn't get on time, trust me friends, what are the planning any chairman or any committee has, that will go haywire. So thank you so much, sir, for your year-round support to the Ahmedabad branch with such an humble smile. The Vice Chairman of the branch, CA Rinkesh Shah, Secretary Samir Chaudhary, Treasurer Sahil Gala,
I would also like to acknowledge the presence of our Vikasa chairperson, Shri Shikha Agarwal. Ahmedabad branch has also been bestowed with the first branch in the students committee. The managing committee colleagues, Jiten Trivedi, Sunit Shah. I'd also like to acknowledge the regional council member and the past chairman, C.A. Bishan Shah, and the past chairmen, Harit Dhariwal, Sunil Sanghvi sir, and Neer Nagri sir. Thank you so much, sir, for the benchmarks which you have set in the past. And as a chairman, we always try to give a little bit more to the members. Whenever we sit in the dais, we just takes the previous year activity chart, what the previous chairman has done. And we take the ideas, the good ones, and obviously all the ideas are good ones, and we try, as an added pressure, what more we can do, because the past chairmen, you have already given a lot to the Ahmedabad branch, and to come out with something new to add on to events, it's a big pressure. Friends, I would just like to give a brief statistics that what we have done in 2025 is an 81 technical programs, 34 nationals and one-day conferences, 4 residential refresher course, 94 topic-based series, and 143 non-technical programs, which includes programs like CA Day celebration, Independence Day, Republic Day, Yoga Day, and many more. It's all possible with the support of the entire managing committee, regional council members, Purushottam Khandelwal, so the central council members, past chairmen and seniors. Friends, this first branch I dedicated to all of you. A big round of applause to all of you, and thank you so much for your kind and humble support. With this, we are here to listen to the Ahuja sir. I'll not take much of the time and request Secretary sir to please take it forward from here. Thank you. Thank you, Chairman sir, for your kind words. And now I request Chairman and the whole committee to please felicitate our respected tax guru from Delhi, C. Girish Ahuja sir. Have a big round of applause for them. Also request Chairman to please felicitate our own CCM from Ahmedabad, Sri Purushottam Khandelwal sir. Have a big round of applause for Purushottam Khandelwal sir. Respected members, a person who has given more than 18 years for members and students, dedicated half of his life for the service of our profession, and also who is behind. We are talking about Ahmedabad branch who received an award and all these stuff. But any approval, any permission, or any guidance we need, we have a person in our mind, that is Purushottam Khandelwal, our own CCM from Ahmedabad. Have a big round of applause for sir. Requesting sir to please welcome all the members. Good morning. Respected tax guru, very humble, kind, Dr. C.A. Girish Ahuja, who continuously coming to Ahmedabad on the budget speech since last many years, I think 15 years, he's always come in the first speech at the Ahmedabad after Delhi. My dear friends and the chairman of Ahmedabad branch, Nirav Agrawal, who done lot of program for the members and students at large. Everything comes to end. His tenure is also going to be end after the February 15th. Vice Chairman of the branch, Rinkesh Bhai, Secretary Samir Chaudhary, Treasurer Shail Gala, of the dais Shikha Agrawal, Jitin, Sunit Bhai, Abhinav Bhai, past Chairman, Bishan Bhai, Secretary, newly elected Secretary of the WRC, Niren Bhai, past Chairman, then Sunil Sanghvi ji, Parimal Bhai Shah, and cameraman is also Harit Dhariwal. And all this is coming behind. So, and all my respected members, friends, you have given opportunity to work for the institute. First of all, I humble and gratitude to all my Ahmedabad members to elect such a wonderful team at Ahmedabad branch, Delhi, and the regional council. Sir, the annual function held in Delhi last day, more than 10,000 members was there, and I'm extremely happy to share that Ahmedabad branch
adjudged as a best branch of ICAI among 183 branch. Not only the members category, but in the student category also awarded as the best branch of ICAI. This is the transparency working of the Ahmedabad branch. After 4 years, we got both the awards simultaneously. The first time Ahmedabad branch got award in 2013 when I was serving as a chairman of the Ahmedabad branch. And the legacy continue. Friends, Ahmedabad is a big branch, 14,000 members, 25,000 students. If you ever try best to serve members and students at large, we created an infrastructure facility in Ahmedabad. So this is the, give a big round of applause for the team Ahmedabad branch led by Nirav Agrawal, Sikha, for the student. Friends, in last 3 days at Delhi, many big men came to the institute. Chairman of the IPEX, Mark Bouquet, Piyush Goyal ji, Tejasvi Surya, Kumar Mangalam Birla. The president term will be over on the 12th February. He's done lot of work for the institute. He has a good rapport with the government of India for the company bill, new income tax act. So friends, we are doing our best to serve the fraternity. I will not take much of time because you are here to hear Dr. Girish Ahuja sir. We will take lot of any time. Thank you so much for coming. Thank you so much, sir, for guidance. Now it is a truly an honor to introduce CA Dr. Girish Ahuja, sir, one of India's most eminent authorities on direct taxation and a tax guru, a senior chartered accountant, academician, and thought leader. Dr. Ahuja, sir, has served as a member of the governments of India's task force for drafting the Income Tax Act, contributing directly to shaping India's tax framework. And most important, he is also held as a position as independent director on the board of several leading corporates and has been a senior faculty at Sri Ram College. And with decades of experience, best-selling authorship, and unmatched credibility, he truly represents a pinnacle of tax excellence in India. सर, अगर एक वर्ड में बोलूँ आहूजा सर की बात, सर लोग ये सोचते हैं कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ स्पेशल नहीं दिया डायरेक्ट टैक्स में, कुछ नई अपडेट नहीं है, पर अगर आज ये हॉल सर फुल है वो सर आपके हिसाब से कि आप यहाँ पे हो तो हॉल फुल है. सो हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आहूजा सर. सर, नाउ द फ्लोर इज योर्स. Sitting on the dais, Central Council member, a very dear friend, of course, CA Purushottam Khandelwal ji, Chairman of the ICAI Ahmedabad, CA Nirav Agrawal ji, Vice Chairman Rinkesh Shah ji, Sameer Chaudhary ji, Secretary, and of course Sahil, the Treasurer of the then, many past chairmen sitting in front of me. I will not name anyone. जिसका नाम रह गया वो मेरे को और गाली देगा. I can see, but I will not name. ये 1, 2, 3, 4 तुम्हें नजर आ रहे हैं, but I will not name it. I will not even name Bishan Shah. चलिए, because he rang me up, तो मैंने कहा I will not even name. Now, sir, let me tell you one thing. This has been a very difficult bill. आप कहेंगे क्यों difficult है? There are 2 acts which have been changed. And the difficulty was 1961 Act has been changed and Income Tax Act 2025 have changed. Somebody is asking me, what was the need of changing section Income Tax Act 2025, which only was passed recently by the Parliament? उसकी क्या जरूरत थी चेंज करने की? उसी की जरूरत थी चेंज करने की. आप कहेंगे क्यों? When 2025 bill came and it was passed, the directions were given, we went there also, directions were given not to change any law. It will remain the same. You may reformat it, you may simplify it, but do not change anything. आप कहेंगे क्या जरूरत है? Purpose was, हमें कैसे पता लगेगा कि क्या change हुआ है? Are you getting my point? How will we come to know that there is change? We will have to read each and every line to find out what is the difference between 1961 and 2025. So nothing was changed. But बताऊंगा क्या हुआ? The purpose was, अगर आप change करना है तो फाइनेंस बिल में कर लीजिए, जो हमें पता लगेगा और मेरी दुकानदारी भी चलेगी,
बात समझ में आ रहा है क्या है? So what I trying to understand is they did not change anything from the 1961 Act. Maybe some clarification wherever some mistake was there, it was rectified. कोई change नहीं किया. तो फिर क्या था? You know that in Income Tax Act 61, if you go to the Google, there are 298 sections. क्या ये correct है? No. Even when 1968 one was passed, there were 298. How can there be 298 this day? The question was, the point was, whenever there was a change, 22, 20, what you call, 15, 16, 17 is salary, 22, 27 is house property, 28 to 44 is business and profession, 45 to 55 is capital gain, 60, ठीक है ना? 56, 57. Up, you wanted to bring any amendment in a business chapter. It is watertight, 28 to 44. Next is 45. 27 is already given. तो क्या करते? Capital डाला, 44 capital A, 44 double A, 44 AB, 44 AC, 44 AD, 44 B, 44 BB, 44 BBA, 44 B triple B, BBC, ये BBD, ये सब सेक्शन ही तो है ना 111, 112, 112A सब सेक्शन ही है. तो क्या मैंने कहा उन सबको एक नंबर अलॉट किया गया, कैपिटल हटा दिए गए. ऑल कैपिटल गन अवे विद, सारे कैपिटल हटा दिए. फिर तो बहुत हो जाने थे, 800 हो जाने थे, क्योंकि देयर आर 800 सेक्शंस इन देयर. ऑल कैपिटल गिवन नंबर. द क्वेश्चन वाज, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसी कंटेक्स्ट में फिर मैं समझाऊंगा. द क्वेश्चन वाज कि ठीक है नंबर दे दिए गए, पर देयर आर मेनी सेक्शंस. हम कई बार कहते होते थे यार ये सेक्शन पढ़ लिया करो, यू शुड रीड वन सेक्शन ईच डे इन द एक्ट. बहुत लोग कहते थे नहीं सर समझ तो आता नहीं. मैं कहा फिर भी पढ़ लिया करो. Somebody rang me up after 4 hours, sir, after listening to you, I read one section. मैंने कई बार बोला वो, लेकिन लास्ट में लिखा था it is not applicable from assessment year 2009-10. मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया. मैं कहा did you ask me how to read it? Whenever you read Income Tax Act 1961, either first read the last line. And if it is not applicable, why should you do it? Or read the first line. उसमें लिखा होगा between this date to this date. तो पहले तो स्टाइल पढ़ना चाहिए ना क्या है. तो वो 80 के 90 सेक्शंस थे, they have already been done away with. वो हटा दिए गए. ATHH, ATHHA, ATHHB, ATHHC, ATHHD, ATHHE, ATHH, ये सब सेक्शन ही तो थे और ये इनऑपरेटिव हो गए थे. सो ऑल इनऑपरेटिव सेक्शंस डन अवे विद. उसके बाद भी बहुत सेक्शन है, बट दिस टाइम दिस हैज कमिटेड ए मिस्टेक, वेरी बिग मिस्टेक. TDS के सेक्शन है अभी तक कितने हैं? 192, 192A, 193, 194, 194A, 194B, 190 है ना. कहाँ तक है? 195 LCD. अब TDS के सिर्फ 2 ही सेक्शन है. वन सेक्शन इज 392 रिलेटिंग टू TDS ऑन सैलरी एंड कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड विड्रॉल. बाकी सारे TDS के सेक्शन 393 में है. ओनली वन सेक्शन giving you all the sections of TDA. उन 393(1) के नीचे एक टेबल बना दी, 393(2) के पीछे एक टेबल बना दी, 393(3) के नीचे एक टेबल बना दी और टेबल डालकर सीरियल नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5 6. और जैसे 193 का सीरियल नंबर 1, 194 का सीरियल नंबर 2, 194A का सीरियल नंबर 3, 194B का सीरियल नंबर 4. अरे कैसे याद करेंगे सीरियल नंबर? पहले तो सेक्शन याद हो जाते थे. अब आपको क्या रखना है? सीरियल नंबर 7 ऑफ द टेबल अंडर सेक्शन 394(1). कितने सीरियल याद रखेंगे? 70 सेक्शंस हैं, 70 सीरियल नंबर उनको दे दिए गए. नॉन रेजिडेंट का अलग है, एलिजिबल पर्सन का अलग है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, वहीं डिफिकल्टी आएगी. सीरियल नंबर डाल दिए गए एक सेक्शन के नीचे. अरे अलग अलग सेक्शन थे, उनको लॉट कर देते तो हमें याद रहता. हाउ विल यू रिमेंबर द सीरियल नंबर? मुझे तो नहीं पता सीरियल नंबर 9 ऑफ द टेबल 1. टेबल 1 नहीं है, टेबल अंडर सेक्शन 393. तो वो कैसे याद रहेगा? तो इसलिए वो कम करके 536 सेक्शन कर दिए. ठीक है जी. और मैंने तब कहा था कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, जब अमेंडमेंट आएंगी फिर कैपिटल सेक्शन आएंगे. आए कि नहीं आए? अमेंडमेंट आएगी तो कैपिटल सेक्शन आने ही पड़ेंगे, क्योंकि वाटर टाइट है.
इवन सीरियल नंबर में भी आएंगे, क्योंकि सीरियल नंबर भी वाटर टाइट है। अगर आपने कोई और एग्जामिशन देनी है तो सीरियल अगर शेड्यूल में तो डालोगे कि नहीं डालोगे, और वो शुरू हो गया है। तो जितने हमने गंगा नहाया पाप किए थे वो हम कुंभ में नहा चुके हैं, अब दोबारा पाप करेंगे। ये पाप कौन करता है? हम ही करते हैं। हम लूप होल्स ढूंढते हैं, वो उसको प्लग करते हैं। अगेन वी फाइंड आउट द लूप होल, वो प्लग करते हैं। इस बार भी सीरियल नंबर वो सॉरी एक्स्ट्रा कैपिटल ABC आ गया है। क्लियर हुआ सर? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए मुश्किल मुझे क्यों पड़ रही है कि किसी ने 2025 एक्ट पढ़ा ही नहीं। पढ़ा नहीं तो सीरियल नंबर सेक्शन ही नहीं पता। और मैं उसको कहूँ कि सेक्शन बोलूँगा तो आपका कहेगा ये क्या बोल रहे हैं, वी डोंट नो एनी सेक्शन। पुराना सेक्शन याद है तो नए का क्या करूँ, और नए में भी बहुत चेंजेस हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मैं पहले 1961 की जो अमेंडमेंट आई वो बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार 26-27 असेसमेंट ईयर भी है और 26-27 टैक्स ईयर भी है। एम आई राइट? असेसमेंट ईयर की अमेंडमेंट लानी थी, पुराने एक्ट में लानी है। क्यों लानी है? 4 तो जजमेंट चेंज कर दी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज करी है। 4 जजमेंट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद पेंडिंग पड़ी है, 2 जजमेंट उठाकर चेंज कर दी। चेंज कर दी है 2009 से 2021 से। दे हैव डन द रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, notwithstanding anything can even if there is some order of the court judgment और ये और वो ये वाला ये होगा, ये करा है। वो जजमेंट अगर चेंज करी है तो 1961 में करी, लेकिन डोंट यू थिंक वही चीज़ें उसमें भी आनी पड़ेगी 25 में? पहले तो विजुअलाइज किया नहीं था। तो जितने भी चेंजेस किए हैं in 1961, all those changes are there in 2025 also. Are you getting my point? मैंने क्या कह रहा हूँ? आपने जो 1961 का बनाया था 2025 कोई चेंज किया था? नहीं किया। अब 1961 में आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो दोज अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 2025 also. बात समझ रहे हैं मेरी क्या प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त? वट एवर अमेंडमेंट यू हैव ब्रॉट इन द 1960 एक्ट विच वॉज नॉट देयर when 2025 was brought, तो वो आपकी सारी अमेंडमेंट यहाँ लानी पड़ेगी कि नहीं लानी पड़ेगी, ये बताइए। और फिर इन एडिशन टू दैट जो नया एक्ट आया है उसमें जो आपको अमेंडमेंट करनी थी वो लानी पड़ेगी कि नहीं लानी पड़ेगी? एम आई राइट और रॉन्ग? पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है। प्रॉब्लम इज ए बिग प्रॉब्लम। मैं नया एक्ट नई अमेंडमेंट बोलूँगा, आप कहेंगे कौन सा सेक्शन, हमें क्या पता है। तो मैं जब नए में आऊँगा तो मैं सेक्शन नहीं बोलूँगा, सिर्फ अमेंडमेंट बोलूँगा, क्योंकि सेक्शन बोलूँगा भी तो आप कहेंगे ये कौन सा सेक्शन है। हाँ बता दूंगा कि अर्लीस्ट ये था, लेकिन टू ग्रेट एक्सटेंट बोलना रिस्क हो रहा है। और मैं जब कल 6 लेक्चर दिए उसके बाद यहाँ भी आया तो मेरी प्रॉब्लम यही रही। वो मेरी तरफ देख रहे थे, कहा कौन सा सेक्शन है। अरे मैंने कहा भैया मैं बोलना ही बंद कर देता, नया सेक्शन, पुराना जरूर बोल लूँगा क्योंकि आपको पुराना आइडिया है। सुनिए जरा, 92CA कौन सा सेक्शन है? यू रेफर्ड दिस टू दी TPO, जो इंटरनेशनल वो ट्रांजैक्शन होती है फॉर आर्म लैंड डिटर्मिनेशन। 92CA में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को आप रेफर करते हैं कि भैया ये आर्म लाइन्स डिटर्मिन कीजिए। ठीक है जी, डिटर्मिन बाय हूम? एंड द आंसर देयर इट इज रिटन that you have to determine and pass the order in writing at least 60 days before the limitation period. मतलब आपको जो ऑर्डर पास करना है 60 डेज बिफोर करना है आर्मल लेंथ प्राइस को, क्योंकि फिर उसने असेसमेंट ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर ने उसका ऑर्डर भी तो पास करना है आफ्टर दैट आर्मल लेंथ प्राइस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितने दिन बिफोर? एटलीस्ट 60 डेज बिफोर द लिमिटेशन पीरियड। अब लिमिटेशन पीरियड 31 मार्च है सपोज, 60 डेज निकालने के लिए मुसीबत। लीप ईयर है तो 60 डेज कुछ और होगा, है मैं राइट? और अगर लीप ईयर है तो 60 डेज प्रोवाइड कुछ और होगा। लॉ ने चेंज कर दिया और 2006 से चेंज किया है 1 जून कि भैया लीप ईयर क्या होगा 60 डेज, हाउ टू कैलकुलेट 60 डेज। 31 मार्च अगर लीप ईयर नहीं है तो 31 मार्च के 31 डेज, एम आई राइट?
28 days, 59 days, और फिर किसका होगा? एक दिन कौन सा लोगे? जनवरी का। तो 30 जनवरी का ऑर्डर पास होना चाहिए। मेरे बात को समझ रहे हैं? कैलकुलेशन कैसे की है? 60 डेज निकालते प्रॉब्लम आती है लीप ईयर में। लीप ईयर में ऑलवेज 60 डेज इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अगर लीप ईयर होता तो लास्ट डेट 31 जनवरी होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? 31 प्लस 29, आर यू गेटिंग भाई? 31 प्लस 29, अगर लीप ईयर नहीं है 31 प्लस 28 प्लस 1 मोर डेज, दैट इज 30 जनवरी। ये डिस्कन हुआ, यहां पर प्रॉब्लम आई क्योंकि उन्होंने ऑर्डर पास किया, टाइम पीरियड के बाद भी किया, इसलिए उन्होंने ये डाला। अब सपोज दिसंबर है, सपोज द लिमिटेशन पीरियड 31 दिसंबर है, तो दिसंबर के 31 डेज, नवंबर के कितने? 30 डेज, तो 61 होगा, तो 1 नवंबर तक पास कर सकते हैं। हमें राइट 1 नवंबर होगा, क्योंकि नवंबर का एक दिन छोड़ दीजिए 20, अब तो मैं दिन ही गिना रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से मत देखना, वैसे ही पता लग जाएगा। 29 प्लस 31 60, सो वो ऑर्डर शुड बी पास्ड बाय टीपीओ बाय 1 नवंबर। ये पहले क्लियर हुआ तो बताइए। बड़ा अजीब सा पॉइंट है, क्योंकि इसमें डिस्प्यूट आया कि वो लीप ईयर में कोई और पीरियड हो जाता है, दूसरे में कोई और पीरियड हो जाता है, और आपको 60 डेज कैलकुलेट करना है, तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दी। कोई भी गलती करी हो तो वो कुछ नहीं हो। पहला पॉइंट समझ में आया? क्लियर है सर? कि उन्होंने ये बोल दिया रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके कि 92 CA में ये हम देखें, पर वही प्रॉब्लम तो इधर भी आएगी जब नया लॉ आया है, और नए लॉ में 166 है, उसको भी तो अमेंड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, वहाँ भी 60 डेज लिखा है। जरा सुनिए, वहाँ भी 60 डेज लिखा है, अमेंड करना था। उन्होंने कहा रुक जाओ यार, हर बार प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेटर से देखना पड़ता है। ऐसे लिख दो, ही मस्ट पास द ऑर्डर बिफोर 1 month प्रीसीडिंग द मंथ इन विच लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर। बिफोर, पहले 60 लिखा हुआ है, लेकिन अब जो अमेंडमेंट डाली है 1 month, एटलीस्ट 1 month बिफोर द मंथ फॉर विच लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर। अब 60 डेज की प्रॉब्लम तो वो खत्म हो गई ना। 1 month कैसे निकालेंगे? 31 मार्च हो गया, 1 month बिफोर, मतलब 28 फरवरी से पहले, तो 31 जनवरी। एम आई राइट? चाहे 29 दिन हो, चाहे 28 दिन हो, वो 31 जनवरी ही रहेगा। और जब दिसंबर होगा तो क्या होगा? 31 अक्टूबर होगा। चाहे वो 61 बन रहे हो, चाहे वो 59, मुझे नहीं मालूम क्या बने, लेकिन पहले 60 ही लिखा था। जो लॉ में 60 को चेंज नहीं किया था, चेंज करते तो फिर पुरानी वाले भी चीज होती, लेकिन इसमें क्या कर दिया? रुकिए, हम अब इसको चेंज कर रहे हैं। हर बार प्रॉब्लम होती है मंथ और नंबर ऑफ डेज। लेट अस नॉट पुट नंबर ऑफ डेज, पुट 1 month बिफोर द मंथ इन विच द पीरियड लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर। अच्छा किया ना, हर बार कैलकुलेट तो नहीं करना पड़ेगा, मंथ लो उठाकर कर दिए। क्लियर हुआ सर? पहले नहीं सोचा था, पहले 60 ही रखा था, क्योंकि पुराने में भी 60 था, लेकिन अब ये चेंज नए में भी कर दिया। जो नाम 166 सेक्शन है, वो तो मैं इंप्रेशन के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज आपको नहीं पता है कौन सा सेक्शन। क्लियर हो गया सर? वे पहला पॉइंट क्लियर हो गया। एनी इशू? अब आइए, रिटर्न ऑफ इनकम यू हैव टू फाइल 139(1), नया नहीं बोलूंगा, 139(1). उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन है, टाइम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग दी रिटर्न, एक्सप्लेनेशन है। क्या ड्यू डेट है? 30 नवंबर, 31 अक्टूबर, 31 जुलाई। एम आई राइट और रॉन्ग? 30 नवंबर कब? जो टीपी का ट्रांसफर प्राइसिंग का रिपोर्ट आनी है, तो 30 नवंबर है। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं है, कंपनी है, और या कोई भी एसएससी अकाउंट्स आर लायबल टू बी ऑडिटेड अंडर अदर लॉ और अंडर एनी अदर लॉ, तो उसके लिए 31 अक्टूबर है। एनी अदर पर्सन क्या है सर? 31 जुलाई है। ये है 139(1) में, एक्सप्लेनेशन में। अब इन्होंने क्या सोचा, और बहुत डिमांड थी लोगों की, सर वो जो फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 होता है, वो तो बहुत कम होता है, छोटा सा फॉर्म 1, 2 है, वो 31 जुलाई ठीक है। लेकिन if there is a person whose accounts are not liable to be audited, but they are carrying on any business or profession, उसमें TDS भी कटते हैं ना कई बार,
तो है, तो उस केस में एक और डेट दे दीजिए और वो 31 अगस्त हो गई. Are you getting my point? What I'm saying? That there is a fourth date also now. Which date is that? Your accounts are not liable to be audited. Your accounts are not liable to be audited. And you are, and you are carrying on business or profession. मतलब फॉर्म 1, फॉर्म 2 वाले को नहीं, फॉर्म 3 जो बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है, इवन फॉर्म 4 अगर वो प्रेजेंटिव इनकम ले रहा है तो इज ही नॉट कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन? Is he not carrying business and profession? He is carrying, and accounts are not liable to be audited if he is under 44 AD or 44 AE. ठीक है ना? 44 नहीं है ना? उसके केस में भी अब 31 अगस्त हो गया. अब थोड़ा भी आराम नहीं करना. ठीक है, जुलाई के बाद अगस्त आ जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा ऑडिट रिपोर्ट करने देने के लिए, उसके बाद अक्टूबर आ जाएगा, उसके बाद नवंबर आ जाएगा. क्लियर हो गया? वो वही महीना भी गया. क्लियर हो गया सर? गलत काम तो नहीं किया उन्होंने, ठीक किया है. उसी का सेक्शन 263(1) है, जो 139 है ना 1, उसको 263(1) में सब सेक्शन सी में लिखा है कि ये पीरियड 4 हो जाएंगे. करना ही पड़ेगा इस साल. ये इस साल का है. असेसमेंट ईयर किसका होगा? 26-27 का. कौन सी है? प्रीवियस ईयर 25-26. लेकिन अगला टैक्स ईयर की रिटर्न कब जानी है? अभी थोड़ी जानी है. 26-27 की कब जाएगी? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. असेसमेंट ईयर नहीं है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 अक्टूबर एंड 30 नवंबर. सो उनको वो भी तो करना था. दोनों कर दिए पैरेलल. पहले ये हुआ तो वो हो गया, ये ना करते तो वो फिर नया करना पड़ता. ये तो बिल्कुल दोनों में कर दिया कि इस साल जो रिटर्न जाएगी असेसमेंट ईयर 26-27 की, वो 4 डेट है इंस्टेड ऑफ 3 डेट. इज इट क्लियर सर? कोई गलत तो नहीं किया? थोड़ा बोझ कम हो गया. क्योंकि एक और प्रॉब्लम आती है, वो जो डाउनलोड करते हैं वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या 26 AS, वो मिलता ही बाद में है, फिर टाइम पीरियड बचता नहीं है. हमें राइट और नहीं? 15 जून को डाउनलोड कर रहे हैं, तब तक कुछ चेंज ना हो वो हो, तो जब डाउनलोड करके रखेंगे इमीडिएटली 31 जुलाई आता है. सो नाउ यू कैन टेक इट ईजी. और आपको 31 अगस्त को देना है जिनके अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते. इवन द पार्टनर्स ऑफ दैट ऑल्सो हुज अकाउंट्स आर नॉट लायबल टू बी ऑडिटेड, दे विल हैव टू फाइल द रिटर्न बाय 31 अगस्त. हाँ, अगर 44 AD में आप नहीं जाकर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे तो फिर वैसे ही क्या हो जाएगा? 31. क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? एनी डिफिकल्टी? नो. ये मैंने आपको 139(1) किया. अब 139(5) रिवाइज रिटर्न है सर. रिवाइज रिटर्न, यू कैन मेक रिवाइज द रिटर्न whether filed under 139(1) or 139(4). You can revise by 31st December, 3 months prior to the closing of the year. That is by 31st December तक आपको रिवाइज रिटर्न करनी है. ये रूल है सर, 31st December. अब पॉइंट ये आया, बिलेटेड रिटर्न डालते हैं आफ्टर 30 whatever is the due date. द बिलेटेड रिटर्न डाल सकते हैं आप, लेकिन आपको उसके लिए फीस देनी पड़ती है. एम आई राइट और रॉन्ग? कौन से सेक्शन में देनी पड़ती है? 234F में देनी पड़ती है. कितनी देनी पड़ती है? 5 लाख वाला तो 1,00,000, और 5 के ऊपर हो तो 5. और जो फीस होती है मैंडेटरी होती है. पहले फीस एडजस्ट होगी तब बाकी टैक्स एडजस्ट होगा. आई एम राइट और रॉन्ग? फीस देते हैं ना देते? अब ये 31 दिसंबर है. बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी सर रिवीजन होता है तो कई बार टाइम लगता है, हमें पता नहीं लग रहा, तो क्या इसको एक्सटेंड कर दिया जाए? उन्होंने कहा ठीक है करते हैं. 31 दिसंबर है, यू कैन एक्सटेंड इट, यू कैन फाइल अप टू 31 मार्च. 3 महीने और दे देते हैं. 3 महीने बियॉन्ड दैट 9 months हम देंगे, लेकिन आपको फीस देनी पड़ेगी रिवीजन के लिए. पहले आपने फीस रिवीजन के लिए नहीं दी थी, बिलेटेड के लिए दी थी. प्लीज रिमेंबर दैट फीस वाज गिवन फॉर बिलेटेड रिटर्न एंड नॉट फॉर रिवीजन. हाँ, रिवीजन आप दोनों का कर सकते थे, 139(1) का, 139(4) का, लेकिन फीस 4 के लिए दी थी, ना कि 5 के लिए. अब फीस 5 के लिए देनी है, बिकॉज यू आर फाइलिंग आफ्टर दिसंबर.
अगर दिसंबर से कर ले कोई दिक्कत। इफ यू आर रिवाइजिंग आफ्टर 31 दिसंबर, अगेन फीस वही है, लेकिन उसका नया सेक्शन डाल दिया 234I, उसमें भी वही है 1000 और 5000। सो बिलेटेड वाले को अगर वो रिवाइज करता है मार्च के बाद, बिलेटेड वाला रिवाइज करता है मार्च के बाद, तो 2 फीस है। एक बिलेटेड वाली फीस जो तो 234F में आती है, और एक रिवीजन वाली फीस जो 234I में आएगी। लेकिन अगर ड्यू डेट तक फाइल किया हुआ है और रिवीजन किया है, डिड यू पे एनी फी? नो। बट आप 31 दिसंबर के बाद करेंगे तो यू विल हैव टू पे। समझ में आ गया? तो 2 फीसेस हैं, एक 234F की, एक 234I की, और अमाउंट सेम है। आपको समझ में आ रहा है? अब अगर आपने रिवीजन करना है, वी आर गिविंग यू चांस, बट यू विल हैव टू पे फी। But revision is of the original return, but the due date return or the belated return, you have to pay fee. But in the case of belated return revise, you have already paid fee under 234F, and now you are going to pay fee for under 234. Clear हो गया सर? 2 फीस हो गई, और ये मैंडेटरी है। आगे चलें सर। ये हमने 139(5) कर दिया। अब आया 139(8)A। आई रिमेंबर, ये हम ही लाए थे जब हम लॉ बना रहे थे, और हमने कहा था छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, कोई चीज़ मिक्स हो गई, हमारे पास, हम ऑनेस्ट पर्सन हैं, हम इसको अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। रिवाइज की डेट निकल गई, रिवाइज की डेट 31 दिसंबर है, वो निकल गई, मैं अपडेट करना चाहता हूँ। आप अलाउ ही नहीं करते अपडेट करने के लिए। यू हैव टू फिर 147 करो, ये करो, 148 करो, भाई अलाउ कर दो। उन्होंने कहा जी ठीक है। हमने कहा मिस्टेक हुई है, 2 साल तक अलाउ कर दो। पहले साल वाली उसका 10% लगा दो एडिशनल टैक्स, और दूसरे साल वाली 25% लगा लो। मान तो गए, लेकिन 10% नहीं किया था, 25% किया, और दूसरे साल वाले का 50 किया था। देखा बहुत फायदा हुआ है, तो इन्होंने 4 साल कर दिए थे। याद आया? 25, 50, 60, 70 कर दिया था। बहुत अच्छा किया। अब ये रिटर्न जब कोई असेसमेंट पेंडिंग हो या रीअसेसमेंट हो का नोटिस आए, तो आप अपडेट नहीं कर सकते। अपडेट तभी कर सकते हैं जब असेसमेंट हो चुकी हो। अगर असेसमेंट पेंडिंग है तो आप अपडेट नहीं कर सकते। 148 का नोटिस आया, मैं 148 कह रहा हूँ, अदरवाइज तो 280 है नए में। यही तो प्रॉब्लम है मेरे साथ, मुझे दोनों देखने में 148 का नोटिस आया जी कि फाइल करो रिटर्न विद इन सच एंड सच पीरियड, विद इन सच एंड सच पीरियड। मैं सोचा भाई पेनल्टी लगेगी, ये लगेगी, अपडेट ही कर दो। आर यू गेटिंग माइट? अलाउ कर दिया अपडेट करना। इवन आफ्टर द नोटिस अंडर 148 इज गिवन, यू कैन रिवाइज इट, जो कि पहले अलाउड नहीं था। यू कैन रिवाइज इट इवन आफ्टर दैट। ठीक है, तो उसे कहा रुको, करना है तो आपको एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कितना? एक्स्ट्रा 10%। क्लियर हुआ? मतलब 25 वाला 35 हो जाएगा, 50 वाला 60 हो जाएगा, सॉरी 60 वाला 70 हो जाएगा, और 70 वाला 80 हो जाएगा। अब दे दीजिए और रिवाइज कर दीजिए आफ्टर गेटिंग ए नोटिस अंडर 148 आया तो कुछ ना कुछ तो पता ही है आपको, तो कर लो। उनको पता है झगड़े में ज़्यादा नुकसान होगा, एक और एक्स्ट्रा मिलर ले लो। समझ आ गई सर? आफ्टर 148, लेकिन टाइम पीरियड में अपडेटेड करना है। कितने दिन में? जितना दिन आपको बोला गया था रिटर्न फाइल कीजिए। अब आप वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, अब अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ सर? ये क्लियर हुआ कि हम अपडेटेड रिटर्न अब फाइल कर सकेंगे बाय पेइंग एक्स्ट्रा 10% ओवर एंड अबव 20, 50, 60, 70, but it has to be filed return before the date specified in the notice under section 148. क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। अभी तक आपको पता है अपडेटेड रिटर्न अगर लॉस की है तो वो आप फाइल नहीं कर सकते। अपडेट कर लो, लेकिन लॉस शुड बी कन्वर्टेड इनटू इनकम, देन ओनली यू कैन अपडेट। यही रूल है ना जी? लॉस शुड बी कन्वर्टेड इनटू इनकम, देन यू कैन अपडेट। लॉस अगर रिड्यूस होगा तो आप अपडेट नहीं कर सकते। लीजिए, इस बार वो भी मान लिया। दोनों हो गए, लॉस कन्वर्टेड इनटू इनकम और लॉस रिड्यूस्ड, स्टिल यू कैन फाइल
अपडेट रिटर्न एंड पे द टैक्स। अच्छा प्रोविज़न है, अच्छा प्रोविज़न है कि लॉस कई बार रिड्यूस होता है, लेकिन फिर हमें अलाउड नहीं था अपडेट करने का, फिर वो 148 ही होता था। वो कहता है ना लॉस रिड्यूस हो गया ना, सरकार को चलो पैसा नहीं मिला लेकिन कैरी फॉरवर्ड तो कम हुआ, तो इसलिए आप अपडेट कर लीजिए एक्स्ट्रा। इसमें कोई वो नहीं पड़ना, टैक्स आना पड़ेगा, आप ये लॉस ही है। क्लियर हो गया सर? ये भी 139(8)(a इसी का। हाँ जी, अभी तक लिखा नहीं है उन्होंने, वहां ऊपर लिखा असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन, लेकिन लॉ तो यही कहता है अगर असेसमेंट पेंडिंग है तो 143(2) में आ गया, अभी तभी तो जा रहे हो। नहीं करेंगे अपडेटेड। 148 में अलाउ कर दिया क्योंकि वो कहते हैं कि प्रूव करो, ये तो हम कर ही लेंगे ना जब 143(2) आएगा, और वो भी फेसलेस है, तो वो उसका नहीं किया रीअसेसमेंट का। इनका पॉइंट है 143 का नोटिस आए तो मैं क्या अपडेट कर लूँ, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। नथिंग इज रिटन दैट यू कैन अपडेट इट, बिकॉज ऑलरेडी रिटन इज दैट यू कैनॉट अपडेट इफ एनी असेसमेंट इज पेंडिंग, ऑलरेडी रिटन इज देयर ना, तो वो नहीं लिखा। लेकिन ये नई चीज ले आए, रीअसेसमेंट के लिए 148 आए तो आप अपडेट कर लीजिए। नो सर, पॉइंट है ये रीअसेसमेंट है। वो पॉइंट ये है कि वो आपका अभी असेसमेंट हुई नहीं है, होगी तो पता लगेगा ना क्या टैक्स है। अरे टैक्स ही नहीं बना तो कैसे दे दोगे, अपडेट कैसे करोगे? कोई टैक्स तो हो, उसका ही तो एक्स्ट्रा देना है। 25% एक्स्ट्रा टैक्स का बना? अरे टैक्स तो आपने तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया है, डिड यू पे एनीथिंग एल्स टैक्स? तो जब तक असेसमेंट नहीं होगी, हाउ मच इज द टैक्स, हाउ विल यू पे 25, 50, 55? वो जब पुराना का तो कर दोगे असेसमेंट, या इसका कैसे होगा? इसलिए नहीं किया। रीअसेसमेंट का मतलब असेसमेंट हो चुकी है, तो इसलिए, या नहीं भी हुई तो 143(1) हुआ है तो वो कोई दिक्कत नहीं। यही पर्पस है, उन्होंने उसको नहीं किया। क्लियर है सर? ये कर सकते हैं, लॉस में वाली भी कर सकते हैं और आप वो भी कर सकते हैं। ये आपका वो आ गया। लेकिन सर टैक्स कौन से सेक्शन में देना है? 140B में। 140B में अपडेटेड रिटर्न का टैक्स देना पड़ता है। 140B में जो 20, 50, 60, 70, 140 उसी में लिख दिया है एक्स्ट्रा 10%। तो बदलना तो पड़ेगा ना सेक्शन, 140B पढ़ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या है? 263(1)(c तो बताया था ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। 263(5) वही था रिवाइज रिटर्न, और रिवाइज रिटर्न आप 31 दिसंबर के बाद भी कर सकेंगे वही। लेकिन वहां तो 234 आई नहीं आना, वहां पर अलग सेक्शन है, वहां 234 नहीं आया। 428 उसमें, सॉरी नॉट 428 भी नहीं है, वो 224 क्यों आया कि आपने अलग देना है टैक्स। आप बात को समझ रहे? टैक्स इज डिफरेंट, और वो टैक्स 273 सेक्शन में है। 273 में अपडेटेड रिटर्न का टैक्स देते हैं, या किस में देते हैं? 140B में अपडेटेड का टैक्स देते हैं। क्लियर हो गया? आप सेक्शन भूल जाओ ना, वहां पर भी देना पड़ेगा। अपडेटेड का उन्होंने चेंज कर दिया, इधर अपडेट किया आपने 10% एक्स्ट्रा दिया, उधर अपडेट करेंगे तो आप 10% एक्स्ट्रा देंगे। वहां नोटिस 280 के बाद है, या नोटिस 148 के बाद है। कितना मुश्किल पड़ेगा? 148, 280, अगले साल आदमी पागल हो जाएगा करते ही करते। और ये जो एक्ट है पुराना 61, ये अभी थोड़ी खत्म हो जाएगा, ये 15 साल चलेगा। हाँ, और आपको हमने सोचा था पिछला एक्ट ले संभाल के रखना जो अभी आया था, अब नहीं, अब अगला एक्ट जो आने वाला है दोबारा आएगा 61 एक्ट अमेंडमेंट होके, वो संभाल के रखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? आप समझे ना? अभी 1961 रिवाइज होगा कि नहीं होगा, एक्ट होगा कि नहीं होगा, उसको फिर संभालना पड़ेगा नहीं ना, क्या क्या चेंजेस आई अभी तक तो हम करें। और वो कहाँ तक चलेगा? अपील सुप्रीम कोर्ट तक। सारे जो अपील रिवीजन है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, आपको उसको भी याद रखना। पर लिटिगेशन वालों को, बाकी को थोड़ी है। अगर लिटिगेशन नहीं है तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, और लिटिगेशन हो ना फिर हम क्या करेंगे? हमें तो लिटिगेशन चाहिए। तो समझ में आ गया सर? क्लियर हो गया? और उसके बाद वो जो सेक्शन था अपडेटेड रिटर्न का, वो मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर 263(6) था, 263(6),
और टैक्स देना पड़ता था 273(3) में। क्लियर हो गया सर? अपडेट हो गया, 140B हो गया। अब क्योंकि 140B में टैक्स दिया है तो पेनल्टी तो लग सकती है। कहता नहीं, 270 सेक्शन में लिख दिया जितना अमाउंट ये टैक्स दिया है उसके अमाउंट उतने इनकम पर अब पेनल्टी दोबारा नहीं लगाएंगे। 270A में पेनल्टी लगती है ना, क्योंकि आपने दे दिया टैक्स। सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ पेनल्टी? तो पेनल्टी नहीं लगाएंगे, इसलिए 270A सेक्शन में अमेंडमेंट कर दी। वॉट एवर टैक्स हैज बीन पेड and for the updated return extra additional IRCs that will not be all that penalty will not be levied. क्लियर हो गया सर? ये एक पॉइंट लिखना था और उन्होंने लिख दिया। कॉरस्पॉन्डिंगली वहाँ भी लिख दिया कि हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। 439 सेक्शन में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये क्लियर हो गया सर? थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं क्या करूँ, इधर भी बोलना पड़ता है, इधर भी लाना पड़ता है। ये कौन सा सेक्शन हो गया? 139 पूरा हो गया। 144C शेल्फ क्या था उसका? सेल्फ क्या था उसका? ड्रिलिंग। सेल्फ ड्रिलिंग की जजमेंट आई कि देखिए 143C क्या है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, DRP। आपको एक ड्राफ्ट ऑर्डर भेजना पड़ता है उसको, वो ड्राफ्ट ऑर्डर एक्सेप्ट कर ले ना, वो कहे कि ठीक है, या वो नो ऑब्जेक्शन ना करे तो असेसमेंट ऑर्डर पास करना पड़ता है। नहीं तो आप DRP को रेफर करते हैं कि ये ड्राफ्ट ऑर्डर है, उसने ऑब्जेक्शन फाइल करी है, इसको आप ऑर्डर पास करिए, डायरेक्शन दीजिए। 9 मंथ्स अलाउड है डायरेक्शन देने के लिए। फिर डायरेक्शन आती है, फिर उसको असेसमेंट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ये DRP है, यही है ना DRP, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आप सर सुनिए, डिफिकल्टी ये है कि एक लिमिटेशन पीरियड है और सपोज लिमिटेशन पीरियड 12 महीने का है, मार्च में ख़त्म हो जाएगा। तो वो कह रहे थे 1 महीना वो, 9 महीने वो, अगर उसने लेट फाइल कर दिया तो फिर तो ये लिमिटेशन पीरियड में आ गया। और जजमेंट आ गई, यस ये लिमिटेशन पीरियड ओवर है। ये सेक्शन कहता है 153 या 153B लिमिटेशन पीरियड ये वाले भी कवर करते, ये वाला भी 1 मंथ ये वो। अब जजमेंट दे दी, अब अमेंडमेंट कर दी। सुनिए, सिर्फ ड्राफ्ट ऑर्डर भेजना जो 1 मंथ का है, दैट शुड बी सेंट बिफोर द लिमिटेशन पीरियड। ड्राफ्ट ऑर्डर सिर्फ, जब वो DRP को जाएगा 9 महीने लेगा, फिर असेसमेंट होगा, वो ये सेल्फ कोड है, इसी में मिलेगा, वो एक्सटेंशन है। आप बात समझिए क्या कह रहे हैं? अभी तक वो कह रहा था 12 महीने का पीरियड टोटल है। आप असेसमेंट कैसे कर सकते हैं कि पहले 1 महीना वहाँ चला गया, उसे ऑफर दिया, आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया 1 महीने के बाद, 9 महीने के बाद उसने रिप्लाई किया, ऑर्डर दिया, फिर उसके बाद ऑर्डर पास करना है। एम आई राइट? अब कई बार लेट हो जाता है। तो वो कह रहे हैं जजमेंट आ गई, नहीं ये तो गलत है, लिमिटेशन पीरियड के अंदर है, तो ये 12 महीने में नहीं पास किया, ये इनवैलिड है। उन्होंने कहा कैसे नहीं वैलिड है? लो हम कर देते, बैक डेट से चेंज कर दिया कि दैट 153 इज ओनली मेंट फॉर ड्राफ्ट ऑर्डर, कि ड्राफ्ट ऑर्डर 1 महीना पहले जरूर देना है, मतलब 31 मार्च से 1 महीना पहले या जब मर्जी दे दो। लेकिन जो ऑब्जेक्शन फाइल करने का पीरियड है, जो उसके ऑर्डर पास, डायरेक्शन पास करने का पीरियड है, और जो असेसमेंट होनी है बाद में, वो एक्स्ट्रा होगा। यही जजमेंट उन्होंने देकर ये शेल्फ और ड्रिलिंग का जजमेंट को ओवर रूल कर दिया है बैक डेट से। ओवर रूल। देखिए, प्रॉमिस किया था कोई रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं करेंगे, इस बार सिर्फ रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ही करी 4, और कुछ किया ही नहीं है मेनली। क्लियर हो गया सर ये वाला पॉइंट? अब आइए आगे। 147A डाला है, क्या है ये? कितना झगड़ा पड़ा होता है, जाओ फाओ, है ना? ज्यूरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, वो फेसलेस असेसिंग ऑफिसर। सुनिए, 148A का नोटिस आता है, जाओ दे रहा है। 148 का नोटिस जाओ दे रहा है, समझ में आ रहा है? जाओ मीन्स ज्यूरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने 148 का दिया, आपसे शो कॉज दिया, उसके बाद आप वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो 148 दिया। कौन दे रहा है? जाओ। तो कुछ लोग कोर्ट में चले गए। जाओ का क्या मतलब है? जब 2021 से फेसलेस आ गया तो फेसलेस असेसिंग ऑफिसर करे।
कई क्या कर रहे थे, 148 वो 148 वो देते थे और 148 पे फाउ देता था। उन्होंने कहा रुक जा, सब गलत है, कंकरेंट जुरिडिक्शन है, तो जो 148 का 48 है और 148 है उसका जाओ ही देगा, फेसलेस वाला नहीं देगा। बात समझ में आ गई? कौन देगा? जाओ देगा। और बैकडेट से 21 से कर दिया। मतलब जो 148 ए आएगा वो फेसलेस ऑफिसर से नहीं आएगा, जो 148 आएगा फेसलेस वाले से नहीं आएगा। जो 148 इशू करेगा टू फाइल ए रिटर्न करता है ना 147 के लिए, वो कौन करेगा? जाओ ही करेगा। और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जब से लॉ आया 1421 से उसको भी अमेंड कर दिया। क्लियर हो गया सर? ये भी जजमेंट थी हेक्सवायर की, हेक्सवायर की जजमेंट थी, उसको ओवररूल करके कह दिया नो, जॉ इज ए कॉम्पिटेंट, जो ही कॉम्पिटेंट है उसको 148 देना और 148 देना, फाओ का कोई मतलब नहीं। तो अब जॉ भी एग्जिस्ट कर रहा है फॉर 148 और वो फाओ तो है ही है असेसमेंट के लिए। लेकिन 148 के बाद जो असेसमेंट होगी 147 में वो फाओ करेगा। क्लियर हो गया? उन्होंने कंकरेंट करके दोनों को वैलिड कर दिया। सर क्लियर है सर? ये कौन सा सेक्शन 147A डाला, वही सेम सेक्शन आगे भी डालना पड़ेगा, वो डालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि पीछे थोड़ी था, अभी डाला है तो अगले अगले एक्ट में भी डालेगा कि हाँ जी 280 और 281 जो वो है नोटिस, वो कौन देगा? जाओ देगा। 280 वही 281 वाला, वो 148 वाला, क्योंकि ए तो बहाना नहीं है। 281 क्या है? जो 148 है, वो कौन देगा? जाओ देगा। तो दोनों जगह अमेंडमेंट है। सर डबल अमेंडमेंट नजर आ रही है ना, एक इधर एक उधर एक्ट में 25 में। ये सारी अमेंडमेंट सब एक्ट में आई है ना, सारी अमेंडमेंट आई है, इधर भी आई उधर भी आई, रिटर्न की भी आई, अपडेटेड की भी आई, इधर भी आई उधर भी आई, तो वो टैक्स की आई, इधर 140 भी, उधर भी आया उधर भी आया। सो नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हैव गॉन अप बिकॉज डुप्लीकेशन है। सेम in Income Tax Act 61, same in the Income Tax Act 25, you have to give the separate section and that's why duplication है। Clear हो गया सर? 147A भी चला गया। अब 270 कैपिटल A में जाइए। 270 कैपिटल A में हमने लिख दिया कि रुको, अगर जो आपने टैक्स दिया 140B का, उसके ऊपर हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। मैं पहले बोल चुका हूँ, वो पेनल्टी नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? नहीं लगेगा। अब आइए 270 डबल ए। डबल ए क्या कहता था? अगर अपना टैक्स दे दीजिए, वो सब कुछ दे दीजिए, तो आपको पेनल्टी 50% की नहीं लगेगी अगर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है। यही कह रहा था ना, अंडर रिपोर्टिंग। और आप कह दो कि मैं टैक्स और दे रहा हूँ, एक तरह मैं अपना एक्सेप्टेंस दे देता हूँ, तो हम नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अब सुन लो, मिस रिपोर्टिंग की कितनी पेनल्टी है? 200%। इन्होंने कहा पता नहीं मिले ना मिले, एक काम और करो, 271 डबल ए में कह दिया कि अगर आप 270 डबल में ऑन योर ओन अगर आप सरेंडर कर देंगे तो हम 100% पेनल्टी ले लेंगे। कितनी पेनल्टी? 100। पहले तो पेनल्टी थी नहीं ना 270 डबल ए में, नो पेनल्टी बिकॉज अंडर रिपोर्टिंग का था, और अंडर रिपोर्टिंग में हमने टैक्स वाइज दे दिया तो देयर इज नो पेनल्टी। और 270 डबल ए में एक डाल दिया दैट इफ इट इज ऑन अकाउंट ऑफ 270A सबसेक्शन 9, जहाँ पर मिस रिपोर्टिंग है और जहाँ 200% लगती थी, जाओ छोड़ रहे हैं 100% दो और हम आपको छोड़ देंगे। ये पुरानी डेट की डाली, तो सिमिलर अगली डेट की भी आएगी नहीं आएगी? वहाँ 439 में डाली है और यहाँ डाली है 270 डबल ए। वो 439 में डाली है, सॉरी 439 में जो पेनल्टी 440 में डलेगी वो वाली, मैं बताऊँगा क्यों। ठीक हो गया सर? क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आ गया कि अब इस अगले साल, ओनली एक ही साल है, अगर आपने मिस रिपोर्टिंग है, बचना चाहते हैं, तो 100% पेनल्टी दे दीजिए विद टैक्स ओनली। जो टैक्स तो देना ही है, 100% पेनल्टी भी दे दीजिए। पहले था ही नहीं, पहले तो नो पेनल्टी अगर 50% है। उसमें भी मैंने आपको बोला ना, ये भी उन्होंने 270 डबल ए डाल दिया, कर सकते हैं, और उधर उसमें डाल दिया। क्लियर हो गया सर? ये क्लियर है सर कि हम पेनल्टी दे सकते हैं 270 डबल ए में अगर आपका क्या हुआ,
वो मिस रिपोर्टिंग, पहले मिस रिपोर्टिंग में हमें इम्यूनिटी नहीं थी, ये इम्यूनिटी है. देयर वाज नो इम्यूनिटी इन द केस ऑफ मिस रिपोर्टिंग. इट वाज ओनली फॉर दैट अंडर रिपोर्टिंग कि आप टैक्स और इंटरेस्ट दे दीजिए, हम आपको 50% नहीं लगाएंगे, वो भी आप ऑप्ट करें तो हम नहीं लगाएंगे. लेकिन अब यहाँ पर भी यही हुआ. लीजिए हम एक और इम्यूनिटी दे रहे हैं कि अगर मिस रिपोर्टिंग की है 200% लगनी थी, 100% दे दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे. प्रोसीजर बच गया ना, सारा शो कॉज दो, इनिशिएट करो, उसको लगाओ और ये करो फिर, तो वो इन्होंने ये कर दिया. क्लियर हुआ सर? ये क्लियर हो गया. ये कौन सा सेक्शन मैंने किया? 270AA. अब सुनिए, आपको डिन सुना था. डिन जनरेट होता है और हर सम्मन्स, हर नोटिस, हर कम्युनिकेशन जो इंस्टीट्यूट वहाँ से आएगी डिपार्टमेंट से, उस पर डिन नंबर होना चाहिए. था ना सर? डिन होना चाहिए. ऑल कम्युनिकेशन, ऑल नोटिसेस, ऑल असेसमेंट ऑर्डर, जो भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से आएगी वह डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करके वह लिखना चाहिए. शुरू में सिस्टम ही नहीं चला और कईयों को पता ही नहीं क्या करना है, तो डिन क्रिएट नहीं किया, ऑर्डर पास कर दिए या नोटिस दे दिए, तो जजमेंट आ गई. रुकिए, क्योंकि आपने नोटिस दिया डिन नहीं है, या आपने असेसमेंट ऑर्डर किया डिन नहीं है, तो ये इनवैलिड जजमेंट है, इनवैलिड नोटिस है, इनवैलिड असेसमेंट है. क्योंकि व्हाई डिडंट यू गिव डिन नंबर ऑन ए नोटिस और ऑन ए कम्युनिकेशन और इवन नॉट दैट ऑन द असेसमेंट ऑर्डर? आपने दिया नहीं. आपको नहीं दिया तो ये डिन, ये गलत है, ये भी वो कर दीजिए. उसको भी अमेंड कर दिया, उसको भी अमेंड कर दिया. लिखिए 292BA. पहले 292B में क्यूरेटिव था कि अगर कोई डिफेक्ट है, कोई ओमिशन है, कोई नोटिस में, तो वो टेक्निकल डिफॉल्ट है, हम उसको क्योर कर सकते हैं. यही था ना क्यूरेटिव सेक्शन 292B लाया था, अपने फेवर में लाए थे, हम उसको क्योर कर सकते हैं. अब 292BA डाल दिया कि रुकिए, अगर कोई कम्युनिकेशन या कोई उसमें असेसमेंट ऑर्डर में हमने नहीं दिया तो रुकिए, अगर असेसमेंट ऑर्डर में उसका रेफरेंस अगर आ गया तो वो बैक डेट से अगर आ चुका है तो वो वैलिड जजमेंट मानी जाएगी. दैट विल बी ट्रीटेड एज ए वैलिड जजमेंट. उन्होंने बैक डेट से कर दिया, तो ये भी काम खत्म हो गया सर. सारे केसेस खत्म. और यहाँ तक ओल्ड एक्ट की चेंजेस मैंने आपको बताई. कुछ ओल्ड एक्ट की कोई और चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 के चेंजेस बताओ जो रेलेवेंट थी. बाकी छोटी मोटी जजमेंट, वहाँ पेनल्टीज़ वगैरह प्रोसिक्यूशन में, प्रोसिक्यूशन का पीरियड कम कर दिया, 7 ईयर का 3 ईयर कर दिया, कुछ पीरियड का 3 का 2 साल कर दिए. वो प्रोसिक्यूशन में अभी भी किए हैं और अगले में भी किए. यस, प्रोसिक्यूशन के और ये भी कहा है अगर प्रोसिक्यूशन है, टैक्स पे ने की है, जहाँ और लिखा है फाइन, तो फिर प्रोसिक्यूशन ना करके उससे वो फाइन ले लेंगे. ये भी क्लैरिटी दी है कि प्रोसिक्यूशन वी शुड अवॉइड, वी विल नॉट डू द प्रोसिक्यूशन. ये पुराने में भी लिखा है और नए में भी आना है. इतने सेक्शन हैं उसके पेनल्टीज़ के, तो सारे सेक्शन वहाँ कोट हुए और सारे सेक्शन यहाँ आए तो यहाँ भी कोट होंगे. क्लियर हो गया सर? तो मैंने इसको डुप्लीकेसी ना करके मैंने आपको बता दिया, प्रोसिक्यूशन में रिलैक्स किया. एक तो पीरियड, now मैक्सिमम इज 3 years. एंड सेकेंड, अगर प्रोसिक्यूशन और फाइन है तो हम प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, फाइन लेके छोड़ देंगे. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर? ये ओल्ड एक्ट आया. अब नए में चलते हैं. पहला नए में था कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या होती है, डेफिनेशन. वहाँ पुराने में भी था, तो नए में वही डालना था. 232 क्या लिखा था? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए सोसाइटी विच रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और एनी अदर एक्ट विच इज इन फोर्स इन दैट स्टेट. यही लिखा था डेफिनेशन, विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब इनको याद आया एक और भी आ गया, मल्टी क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002. उसका तो जिक्र ही नहीं किया. हमने तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का किया, मल्टी स्टेट का किया नहीं है, तो उसको अमेंडमेंट कर दिया. रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव एक्ट और रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002.
क्लियर हो गया सर? कोई खास बात नहीं है, खास बात तो अगली है। सेक्शन 2 क्लॉज 40 सब क्लॉज एफ, क्या थी एफ वाली क्लॉज? आपको आया था बाई बैक के केस में, याद कीजिए क्या लॉ आया था? बाई बैक के केस में, इन द केस ऑफ बाई बैक, द इंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय यू शैल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। आया, एफ क्लॉज डाली 240 एफ में, एंटायर के 240 तो नए का है ना, मैं नए की बात कर रहा हूं, पुराने की बात नहीं कर रहा, कि वो क्या माना जाएगा? डिविडेंड माना जाएगा। बड़ी डिमांड थी, उन्होंने कहा चलो। और फिर क्या लिखा था 46A में कि कैपिटल गेन लगना है लेकिन उसकी कंसिडरेशन प्राइस 0 होगी। यही लिखा था 46A में, 46A में सबसेक्शन 2 में लिखा था द कंसिडर इट विल बी ए कैपिटल गेन, 46(1) में लिखा है, लेकिन कंसिडरेशन प्राइस विल बी, जब कंसिडरेशन नील हो गई, कंसिडरेशन आप वहां ले गए तो लॉस ही होना है। अगर कंसिडरेशन नील है तो लॉस ही होना है, जो भी कॉस्ट है मेरी, और वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो या सेटअप कर सकते हो। यही लिखा था जी 46A में। हमने बड़ा शोर मचाया था, ये कौन सा तरीका है, क्योंकि क्या 30% टैक्स है, शूट नॉट बी देयर। अब उन्होंने मान लिया। सेक्शन 240F, मैं अब नए एक्ट की बात कर रहा हूँ, पुराने में तो हो नहीं सकता। 240F में एफ क्लॉज को हटा दिया कि आप डिविडेंड इनकम नहीं मानी जाएगी एज वो जो बाई बैक के शेयर में जो कंसिडरेशन मिला, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। क्लियर हो गया? नाउ इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर से इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। ओके, वेरी गुड। तो क्या माना जाएगा? वो 46A 70 सेक्शन बन गया। कौन सा सेक्शन बन गया? 70। और 70 सब सेक्शन 1 में कह दिया कैपिटल गेन होगा कैपिटल गेन। मैं एक इन्वेस्टर हूं, अदर देन प्रमोटर के बारे में बात अलग करता, वो कैपिटल गेन होगा। तो कैसे निकालेंगे कैपिटल? बड़ा सिंपल है, जो पैसा मिला माइनस कॉस्ट तो है ना हमारी, माइनस कॉस्ट कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर वो लॉन्ग टर्म है तो कितना टैक्स बढ़ेगा? 12.5, चाहे वो लिस्टेड का हो, चाहे वो क्या कहता हूँ, लिस्टेड कंपनी का हो, चाहे वो अदर हो, 12.5 है। 12.5 है और इंडेक्सेशन है नहीं, 12.5% देना पड़ेगा आपको। 12.5 कहते हैं, बाकी सरचार्ज वगैरह लेके वो तो 14.95 भी हो सकता है, बट आपको 12.5 देना है। आपके लिए कैपिटल गेन है। कैसे निकला? कंसिडरेशन प्राइस माइनस द कॉस्ट, लाइए 12.5 दीजिए। लेकिन अगर वो है शॉर्ट टर्म है 111A वाला, तो लीजिए 20 दीजिए, 20 ही होगा। अगर अनलिस्टेड का है तो लाओ 30 दीजिए, क्योंकि अनलिस्टेड में शॉर्ट टर्म में तो 30 ही है ना सर, एम आई राइट? अनलिस्टेड शॉर्ट टर्म 30 है, लिस्टेड शॉर्ट टर्म 20 है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड 12.5% है। वैसे आज लोग बड़े खुश हुए होंगे, आज तो ट्रम्प जी ने मजा कर दिया आपका, सारे शेयर बढ़ गए। बार बार देख रहे हैं लोग, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया। बात समझ में आ गया मैंने क्या कहा? नज़र वही है, और अहमदाबाद की ना नज़र ना हो, ये कैसे हो सकता है? आज चेहरे में मुस्कुराहट है। पिछले 10-15 दिन में गोलियां पड़ती थी ट्रम्प को, हुआ ना सर? तो ये तो पता है, मैंने नीरव को भी कहा था, आज तो बड़े नाम आ रहा है, पैसा आ रहा है। मैंने भी 2 बार देखा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब देख नहीं सकता इसलिए चुप करके बैठा हूं। मैं रिलैक्स करने के लिए कई बार इधर उधर की बातें कर लेता हूं। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे थे? मेरे को आना पॉजिटिव नहीं है, जब तक मैं दिल्ली में रहा तो मेरा तो नेगेटिव ही होता रहा, तो मुझे फायदा हुआ आने का, आपको हुआ नहीं हुआ, मुझे तो हुआ। चलिए सर, सो व्हाट एम ट्राई, अहमदाबाद वाले ही तो पैसे कमाते हैं, हम कहाँ कमाते हैं? हम कहाँ पैसे कमाते हैं? क्योंकि हम तो सारा टैक्स ही दे देते हैं। समझ में आ गया मैंने क्या मारा है? मैंने कुछ बोला नहीं है। आई वुड लाइक टू पे टैक्स एंड एंजॉय लाइफ। मैं आपको बता दूं, दुनिया में वो जमाना चला गया नंबर 2 का। अगर नंबर 2 कमाएंगे, या आप खुद खराब हो जाएंगे या आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत कमा लो, जितना खा लो, उससे ज़्यादा नहीं कमाना, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ज़माने में तो 97.5% इनकम टैक्स था।
97.5% इनकम टैक्स, और बचाते थे तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था, गिफ्ट करते थे गिफ्ट टैक्स देना पड़ता था, और मरता था तो स्टेट ड्यूटी टैक्स देना पड़ता था। इतना बुरा हाल था, इनकम से ज्यादा टैक्स बनता था। अब तो कुछ नहीं देना सर, 30 ही तो मैक्सिमम है, और कंपनी के लिए तो 22 ही है, वो 25 कह लो उसको, 30 पे सरचार्ज लगा के कर लो। और फिर जो हमारे गरीब आदमी हैं उनकी तो सबकी इनकम बढ़ गई, 12 लाख हो गई, सबकी बढ़ गई। कोई भी है लेकिन जीएसटी टर्नओवर नहीं बढ़ा है। मैं गलत बोल रहा हूं? टर्नओवर वही 40 लाख है या वही 20 लाख है, लेकिन इनकम सबकी 12 हो गई। कितना बढ़िया काम किया। जीडीपी तो बढ़ गई ना, और कुछ बढ़े ना बढ़े, जीडीपी तो बढ़ गई हमारी। हम 3 ट्रिलियन का बनाना है अपने आप को, तो यही तरीका है, 12 कर दो। लोग सोचते इस बार 15 हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, इलेक्शन आने दो, उससे पहले हो जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मैं बता के गया, पिछली बार भी बताया था, ट्यूशन क्लासेस, कुकरी क्लासेस, पता नहीं कौन कौन सी क्लासेस, सबका 20 लाख से नीचे है, और लेकिन इनकम 12 लाख। हमारे, मैंने क्या बोला था, हमारी कंट्री में इतनी ब्यूटी नहीं है जितने ब्यूटी पार्लर वाले इनकम दिखाते हैं। सर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए किया है, ताकि आप बहुत थक गए थे, हैवी हो गया था। अब मैं वापस आ रहा हूं। अब क्या किया है, आपको तो 12.5% देना है अगर आप इन्वेस्टर हैं, या 20 देना है या 30 देना है बाई बैक में अगर आप इन्वेस्टर हैं। लेकिन रुकिए, प्रमोटर्स को कोई फायदा नहीं हो। अगर वो प्रमोटर है, प्रमोटर भी 2 तरह के हो सकते हैं, कंपनी एंड इंडिविजुअल। अगर कंपनी प्रमोटर है तो क्या टैक्स रेट है कंपनी का? 22%। कंपनी अगर प्रमोटर है और वो 12.5 दे रहा है तो 9.5% कंपनी को देना पड़ेगा, तो 22 हो गया। समझ में आ रहा मैंने क्या कहा? आपने 12.5 देना है, बाकी कौन है? एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कितना? 9.5%। किसको? उस कंपनी को। कंपनी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिया और एडिशनल भी दिया, कैपिटल गेन का ही टैक्स है। कितना? 9.5, टोटल इज 22। अगर वो शॉर्ट टर्म है तो ऑलरेडी पेड 22% दे दो, 2% दे दो। क्लियर हो गया सर? अगर कंपनी प्रमोटर है, मैं आगे चलूं, अगर कंपनी प्रमोटर नहीं है, इंडिविजुअल प्रमोटर है, कितना टैक्स है? 30। आपने 12.5 दिया, 17.5 दो। आपने 20 दिया, 10 दो। आप अनलिस्टेड का 30 दिया तो वो तो अभी भी 30 है। अब बात को समझ गए मैंने क्या कहा है? The promoters will not be spared. They will have to pay 30% in the form of 12.5% as capital gain plus the balance additional tax as 17.5%, और 10% अगर 20 दिया है तो 10% वो उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। प्रमोटर की डेफिनेशन दे दी। लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर वही है जो सेबी वाले, जो सेबी वाले। अनलिस्टेड के प्रमोटर वो हैं जो कंपनी एक्ट में डिफाइन किया है, या जिनके पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 10% शेयर होल्डिंग है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर पर्सन हो सकता है, वो रिलेटिव ना हो। भाई कंपनी एक्ट में तो रिलेटिव का लिया हुआ है ना प्रमोटर के अंदर, वो रिलेटिव ना हो, लेकिन शेयर 10% से ज़्यादा है तो उनको हम प्रमोटर की कैटेगरी में लाएंगे। अगर 10 से कम है और वो उस डेफिनेशन में नहीं आते कंपनी एक्ट की, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? या अनलिस्टेड के लिए, लिस्टेड के लिए तो ऑलरेडी प्रमोटर की डेफिनेशन जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया सर? ये मैंने सेक्शन 69 किया है, 69 नया वाला, क्योंकि अब पुराना कुछ नहीं हो रहा। 69 किया है, और वो मैंने आपको कहा कि ये वाला 240 से हट गया, वो वाला डिविडेंड वाला, और कहाँ पर आ गया? 69 में। और 69 में कह दिया कैपिटल गेन, नॉर्मल इन्वेस्टर कैपिटल गेन, प्रमोटर कैपिटल गेन प्लस द एक्स्ट्रा अमाउंट टू ब्रिंग इट टू 30%। क्लियर हो गया सर? इससे इजीली समझ में आता है। जो भी लगेगा 30 लगना चाहिए था, आपने 20 दिया तो 10 दे दो, 12.5 दिया तो 17.5 दे दो, अगर 30 दिया तो हम कुछ कह ही नहीं। ये प्रमोटर्स के लिए हुआ सर। मेरे लिए 12.5 पर करेंगे वो परचेज,
फायदा तो उनको होता था जब बाई बैक करते थे, हमें थोड़ी ज़्यादा फायदा था, हम तो उसके साथ फायदा ले लेते थे। अब जो प्रमोटर कैटेगरी में है वो बाई बैक करेंगे तो फिर भी वही अमाउंट ऑफ टैक्स देना है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन। है तो 30 ना, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन। क्लियर हो गया सर? इज इट क्लियर? ये कौन सा मैंने बोला? 69। अब एक 70 सबसेक्शन 1 क्लॉज 10 है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, है ना सर? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या था? जब रिडेम्पशन में पैसा मिलता था तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, लेकिन वहां पर एक साइलेंट था कि आपने अगर ड्यूरिंग द पीरियड बेच दिया या खरीद लिया, बेचा या आपने किसी ने तो खरीदा ही है ना, तो उस केस में जिसने बेचा उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और जिसने खरीदा वो उसकी कॉस्ट हो गई। लेकिन जब रिडेम्पशन होगा तो वो माफ होगा। किसको माफ होगा? बायर को। लोग इसका फायदा उठा रहे थे कि भैया बीच में बेच दो, वो 12.5% दे दे टैक्स। बात समझ में आया? और आप खरीद लो और आपके बाद माफ हो। लिख दिया, अमेंड कर दिया, वंस फॉर ऑल। ओनली तब ये एग्जेम्पशन होगा जब एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन बारोइंग एंड टिल द रिडेम्पशन द सेम होल्डर हो। अगर होल्डर चेंज हो गया तो हम टैक्स आपको दोनों को टैक्स लगाएंगे। उसको पहले लगा दिया है और बाकी जब आपका रिडेम्पशन होगा तो फिर लगा देंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो गोल्ड बॉन्ड में लगा रहे थे 70 सेक्शन में था, रिडेम्पशन में पता नहीं कितना मिलना था, आज बढ़ा है क्या कम हुआ मुझे नहीं पता। रिडेम्पशन में ज़्यादा मिलना था लेकिन अब नो, क्योंकि आपने बाई किया है तो इसलिए यू हैव टू पे कैपिटल गेन। इफ यू हैव बॉट एट सब्सक्राइब टू दैट, जो कंट्रीब्यूट किया था शुरू में ओरिजिनल, एंड नाउ अगर हैं तो आपको एग्जेम्पशन रहेगी। ये 70 सेक्शन में डाल दिया गया। चलिए आगे सर। 93 सेक्शन। अब कहेंगे मैं क्या बोलूँ, ना ज़्यादा सेक्शन मत बोलूँ। ये डिडक्शन फ्रॉम अदर सोर्सेज है जो 57 होता था। अब मेरे को यही बोलना पड़ता है ना, क्या करूँ। 97 में डिडक्शन होता था तो वहाँ लिखा था कमीशन एंड ब्रोकरेज, इंटरेस्ट और डिविडेंड पे जो देते हो वो अलाउड होगी, लिखा था। जैसे 57 में ब्रोकरेज इंटरेस्ट ही कह रहा, ब्रोकरेज ऑन इंटरेस्ट, वो जो मनी बोरोड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ब्रोकरेज ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और कमीशन, और ब्रोकरेज और कमीशन ऑन, वो क्या था, खर्चा अलाउड था, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा 93(1) में क्या किया, क्योंकि ये डॉर्मेंट इनकम है, ये डिविडेंड्स अब ग्रॉस में टैक्स होगा। नो डिडक्शन ऑफ एनी कमीशन और ब्रोकरेज ऑन डिविडेंड। आपने शेयर में तो दिया ना, और किसको दिया? डिविडेंड आया और आपने शेयर के लिए कमीशन और ब्रोकरेज दिया, वो कहता है कोई कमीशन ब्रोकर डिविडेंड कलेक्ट करने का नहीं मिलेगा। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड होता था, 20% ऑफ द डिविडेंड का हम खर्चा अलाउ करते थे, वो भी खत्म कर दिया। नो, the entire gross amount of dividend received by you will be taxable under the head income from other sources. You will not be entitled to any deduction whatsoever. कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी whatsoever, चाहे कमीशन ब्रोकरेज की हो चाहे इंटरेस्ट ऑफ मनी बोरोड की हो। ये क्लियर कर दिया सर। ये कौन सा सेक्शन था मैंने बोला? ये 93 सेक्शन बोला। 93(1) और 93(2) देखिए सर। मुझे डर बड़ा लगता है, जो किताब खोल के बैठते हैं ना, मेरी हालत ख़राब होती है। कोई नहीं करी, देखिए मेरे को गलती करोगे तो गलती वो पॉइंट आउट नहीं करेगा डर के मारे। वो कहेगा जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, ये तो गलत लिखा है, ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ सर? इज इट क्लियर? आइए, एक 147 सेक्शन है नया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ATLA जो होता था, ATLA है वो 147 है। मेरे को तो बड़ा परेशानी हो रही है सर, मैंने कभी कागज़ हाथ में रखा नहीं। पहले सेक्शन तो सारे ही याद थे, सब सेक्शन सब याद थे, क्लॉजेज भी याद थे। इसका याद करना, अगर तो मैंने देख लिया क्योंकि तो मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी। तो मुझे कितना लर्न करना पड़ेगा, सारे सेक्शन दोबारा नंबर याद करने पड़ेंगे, सब सेक्शन याद करने पड़ेंगे, क्लॉज याद करने पड़ेंगे। मैं सेक्शन तो बोल रहा हूँ, लेकिन आपको क्या पता ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? आपने कौन सा पढ़ा हुआ है? समझ में आया? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब तो आपको एक साल दोनों
करने हैं और उसके साथ एक तो वो तो कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी, ये तो रेगुलरली ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या कहा, क्या बोल रहा था मैं, किसका कर रहा था मैं, SEZ में शेड्यूल बैंक होते हैं, ऑफशोर बैंकिंग होते हैं, या फॉरेन बैंक इन इंडिया इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, या यूनिट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। इसके लिए पहले डिडक्शन थी, डिडक्शन थी 10 ईयर्स, कंसेक्यूटिव 10 ईयर्स, और लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए थी 10 ईयर्स आउट ऑफ द 15 ईयर्स, जहाँ से आप स्टार्ट करें फॉर 10 ईयर्स, बट कंसेक्यूटिव 10 ईयर्स आउट ऑफ द 15 ईयर। आप 1 साल के बाद करेंगे तो वो आ जाएगा 10 साल, और 5 साल के बाद करेंगे तो 10 साल वो ले लीजिए। ये था लॉ। इस 10 को 20 कर दिया, और वो भी 10 को 20 कर दिया कि 10 ईयर्स को 20 ईयर्स तक माफ होगा, डिडक्शन होगा, 20 ईयर तक डिडक्शन होगा, और वो 20 ईयर आउट ऑफ 25 ईयर्स। भाई इतना फर्क डाला, लेकिन चीज़ वही है, ATLA का एग्जेम्पशन और डिडक्शन वही रहेगा। और ATLA का डिडक्शन तो इवन ओल्ड रिजीम चली जाएगी तो भी मिलना है, वो तो ऑलरेडी है। क्लियर है सर? ये ATLA किया। आइए अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास आए। कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी सोसाइटी आपके यहाँ तो है अमूल, जो भी प्राइमरी सोसाइटी सप्लाई करती है मिल्क, ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू ए फेडरल मिल्क सोसाइटी और टू गवर्नमेंट कंपनी, तो वो इनकम एग्जेम्प्ट है। किसको एग्जेम्प्ट है? प्राइमरी मिल्क सोसाइटी हैज टेकन रेज, किससे लिया? मेंबर से ग्रो करके आपको दिया, तो उसका इनकम माफ है। वहाँ पर था, मैंने क्या बोला, मिल्क, ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वो ऑयल सीड के साथ ऑल्सो लिख दिया कॉटन सीड्स एंड कैटल फीड। कैटल फीड भी होगा तो वो प्राइमरी सोसाइटी कलेक्ट करके अगर वो फेडरल मिल्क सोसाइटी को देंगे, फेडरल सोसाइटी को, तो हम उसको भी कवर कर देंगे। क्लियर हो गया ये दोनों? अब एक था डी सेक्शन, क्रॉस डी, उसका पहले 80P होता था ना, 80PD, अब आया 149D। उसमें लिखा था इनकम डिराइव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और बाय वे ऑफ डिविडेंड। लैंग्वेज में थोड़ा चेंज था, लैंग्वेज को बदल में करके लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर दिया, होल ऑफ द इनकम विल बी। वो तो इंटर कोऑपरेटिव इन्वेस्टमेंट है, एक कोऑपरेटिव दूसरी कोऑपरेटिव में इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट या डिविडेंड। क्लियर? अब एक नई चीज़ डाली है 150 सेक्शन में। 150 में इंटरप्रिटेशन थी, वो 149(6) में ले गए। अगर आप फेडरल सोसाइटी हैं, क्या है? फेडरल सोसाइटी, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, टोटल इन्वेस्टमेंट अप टू 31 जनवरी 2026, बजट तो अब आया ना 2000, उस इन्वेस्टमेंट में अगर आपको डिविडेंड आता है, अगर वो डिविडेंड बिफोर द ड्यू डेट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मेंबर्स को, तो जैसे ATM था ना कि उसमें टैक्स नहीं लगेगा, ऐसे ही ATM यहाँ पर आ गया है। क्लियर हुआ सर? क्या किया? 31 जनवरी 2026 में मेरे पास क्या है? इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट को फेडरल सोसाइटी को, फेडरल कोऑपरेटिव को क्या आ रहा है? डिविडेंड आ रहा है। वो डिविडेंड मेरे हाथ में आउट फ्रॉम अदर कंपनी, नॉट फॉर द सेम, नॉट फ्रॉम वन कोऑपरेटिव टू अनदर, आउटसाइड में मैंने कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसने कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, डिविडेंड आया। किस इन्वेस्टमेंट पे? जो 31 जनवरी 2026 की इन्वेस्टमेंट है, आया। हम उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें ड्यू डेट तक अपने मेंबर्स को, तो फिर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, मेंबर को लगेगा, आपको नहीं लगेगा। और ये 3 साल के लिए दिया है आपको ये अमाउंट, तो ये है 150 सेक्शन। क्लियर हो सर? 150 सेक्शन समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आइए 195। ये 195 वही है जो 115 BBE होता था। समझ में आया? BBE आपको मैंने बताया BBE क्या होता था? 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D कि अगर इनकम एस्केप है तो आपको, अगर यू रिफ्लेक्ट इन द रिटर्न ऑफ इनकम, तो आपको 60% टैक्स लगता है, 25% सरचार्ज लगता है, एम आई राइट? और 4% वो लगता है 78%।
अगर वो डिटेक्टेड बाय द एओ है तब भी यही लगता है, लेकिन उसके अंदर 271 AAC 270 उसमें आपको 10% पेनल्टी लगती है, जो 6% हो गई। तो कितना टैक्स देना पड़ता है? 84। अगर एओ डिडक्ट करेगा, अगर आप खुद दिखा देंगे लेकिन आपने उसका सोर्स नहीं बताया तो कितना लगेगा? 78%। बहुत दिनों से शोर है, और ये शोर तो मैंने ही मचाया था, क्योंकि ये लगाया गया था डीमोनेटाइजेशन का टाइम पे, और मुझे जेटली जी ने कहा था 2 साल रुक जाओ, इसको हम कम कर देंगे। पहले कितना था? 30% था, लेकिन पेनल्टी लगती थी 100%। है मैं राइट? अब जब गए थे ईद बनाने, रोजे गले पड़ गए। सुनिए क्या है, 60 को 30 कर दिया, 60 को 30 कर दिया है। बड़ा अच्छा किया, बड़े खुश हो गए हम 30 कर दिए, लेकिन इसको मिस रिपोर्टिंग मान लिया। अगर एओ ने निकाला तो क्या मान लिया? मिस रिपोर्टिंग। एओ हैज डिटेक्टेड दैट, आपने नहीं दिया, एओ ने डिटेक्ट किया, तो इसको क्या कहेंगे? मिस रिपोर्टिंग। जो 279 में था वो अब 439(13) में है, तो वो क्या कहेंगे? ये मिस रिपोर्टिंग है, लाओ 200% पेनल्टी दो। कितनी? 300 प्लस 200 900 90% हो गई। गए थे ईद बनाने, रोजे गले पड़ गए भाई। 84 ही तो दे रहे थे हम। कितना दे रहे थे? 84 दे रहे थे मैक्सिमम। अगर एओ निकाले, मैं निकालूं तो 78 दे रहे थे। वो कहता ना ना ना, आप उसको क्या करेंगे? उसको यहाँ से 30 कर देते हैं। बड़े खुश हुए लोग, बहुत कहा ओ 30 हो गया 60 का। अबे सुन तो लो, वो 60 का 30 हो गया, अगर वो मिस रिपोर्टिंग है तो वो 60% टैक्स भी तो लग, पेनल्टी भी तो लग गई। ठीक है, और सुनिए, जो 30 है उसका सरचार्ज अभी भी 25 है। 25 है, वो सरचार्ज अभी भी 25 है। तो 30 प्लस 25 37 प्लस 4% 39% दे रहे हैं। वहां 39 और प्लस 2 60 99 हो गया भाई साहब। देखा आपने क्या कहा है? वो 30% जो टैक्स रहा वो 102 से 106 वही वाली है, जो 68 69 वगैरह, उस पर अब कितना लगेगा? अब आपको 60 नहीं देना सर, बहुत अच्छा 30 दो, लेकिन अब वो मिस रिपोर्टिंग में चला गया। कितना दो? 200 दो, 200 दो, और ये 30 पे 39 दो। बात समझ में आ गया? अब सुनिए, अब 440 सेक्शन में कह दिया कि चलो अगर ये 68 वाला नहीं है तो 100% दे रहे हो ना 100%, जो 270 AA में भी डाला है कि 100% दो, 200 के बदले ले लो। इसमें ही लिखा 100% दो, 200 के बदले ले लो। लेकिन अगर ये 68 वाला है तो 120% दो। जाओ, 120% कितना हुआ? 36% देना पड़ेगा ना। एडमिट करो तो 36 ये दो, 39 वो दो, तो मिला क्या हमें? आप मेरी बात को समझ रहे? 440 में आप सरेंडर कर सकते हैं, इम्यूनिटी ले सकते हैं। कितनी इम्यूनिटी? अगर तो बाकी वाली है जो 270 AA की थी वो 100% थी, और यहाँ पर 120%। ये दे दीजिए तो हम आपको पेनल्टी नहीं लगाएंगे, 200% ये लगा लेंगे। तो मतलब वो तो चाहते हैं जो आए वो ले लो, माल मिल रहा है ले लो, को इस तरह भी नहीं मिलना बाद में क्या होगा, लेकिन ये अब आपको पेनल्टी देनी। ये क्लियर हो गया सर? इज इट क्लियर? ये कौन सा है? 195 में 30% कर दिया, लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल उसको वहाँ पर मिस रिपोर्टिंग में ले गए, और मिस रिपोर्टिंग में 200% है, लेकिन 440 में जाकर कहा 120 दे दो, छुड़वा देते। पुराने का तो 100 देना ही है, ये 120 दे दो तो छोड़ देंगे। क्लियर हुआ सर? इज इट क्लियर? ये 195 सेक्शन है। 206 आप कहेंगे फिर वही, मेरी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई है, इसकी हो गई है, देख लो। चलिए चलिए, मैं ठीक कह रहा हूं ना, खत्म होने वाली थी। चलिए 206 मैट। सर बड़ी बड़ी कंपनियां अभी भी 30% टैक्स दे रही हैं, या 25 दे रही हैं, जो 400 करोड़ वाली है अभी भी दे रही है। वो कह रहा है मैट ही है ना, दे देंगे, लेकिन मैट कैरी फॉरवर्ड तो हो रहा है, आगे जाके कर लेंगे। वो अभी भी दे रही हैं 15%, और पिछला कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिलायंस अभी भी दे रहा है, ये वही 30 में है, हम 22 में आ गए। वो 22 नहीं, हमारा भी 25.168% है, लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज आर पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ कितना? मैट दे रही है, अदरवाइज 30% की ब्रैकेट में है।
भाई पैड 15 दे दोगे तो बाकी वो 15 आगे देंगे और बाकी कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर लेंगे। सुनो, अगर आप नई रजीम में नहीं आए तो हम मैट 14% देंगे। वार्न कर रहे हैं नई रजीम में आ जाओ। इफ यू डोंट वांट टू कम टू न्यू रजीम, पे मैट 14%, बट यू विल नॉट बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड। और पिछला भी गया। समझ में आया मैंने क्या कहा? जो ब्रॉड फॉरवर्ड था, जो कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, वो भी गया, और जो आगे देना है वो 14 दीजिए और वो 14 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप आ जाइए ना हमारे पास 200 सेक्शन में कंपनी का, या 201 सेक्शन में आइए, हम आपको क्रेडिट अलाउ कर देंगे। हम देंगे क्रेडिट आपको जो पड़ा है। आगे तो है ही नहीं मैट 201 में, उसमें तो मैट है ही नहीं, लेकिन पिछला मैट तो पड़ा है, हम अलाउ कर देंगे मैट में जाइए। कितना अलाउ करेंगे? जितना टोटल टैक्स बनता है उसका 25%, और कैरी फॉरवर्ड वही 15 ईयर है। कितना? मतलब 75% तो मिनिमम देना पड़ेगा, और 25% जो ब्रॉड फॉरवर्ड है। आ जाइए नई रिजीम में ना। अल्टीमेटली हम नई रिजीम चाहते हैं, पुरानी तो खत्म करनी है। पुरानी तो हमने इंडिविजुअल की भी करनी है, पार्टनरशिप की भी। सिर्फ एक ही वजह से रुकी पड़ी है, अभी तक पार्टनरशिप की नई रिजीम नहीं आई है। कहाँ आई है पार्टनरशिप की नई? इस साल आनी थी, नहीं आई। अगर पार्टनरशिप की नई रिजीम आ जाती तो ये ओल्ड रिजीम खत्म हो जाती। ओल्ड रिजीम खत्म करेंगे, और जिस दिन ओल्ड रिजीम खत्म होगी 80 सेक्शन खत्म हो जाएंगे। अभी क्यों नहीं करा? पार्टनरशिप की क्या करें, सोचते सोचते थक गए। अरे 30% देते हैं और फिर कर ले जाते हैं सब कुछ। कंपनी तो पहले 25 देती है और फिर देती है सर वही 12.5 2, अब तो 12.5 हो गया, पहले तो 30 ही दे रही थी। तो कंपनी के केस में तो बहुत नुकसान है, और कंपनी प्रमोटर है तो वही 30 है। एम आई राइट? तो ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है कि कंपनी को तो ज़्यादा टैक्स पड़ रहा है, और पार्टनरशिप आज सारे LLP खोल रहे हैं। एवरीवन इज स्टार्टिंग LLP। वाई? और पे टैक्स एंड गो एंड एंजॉय। उसका तो मेरे घर आ गया। तो वो भी चाहते हैं कि पार्टनरशिप का कोई ओल्ड रजीम को ख़त्म करें। कैसे करें? मैंने सजेशन दिया, सर 30 का 25 कर दो, सरचार्ज कंपलसरी कर दो, और डिडक्शन तो ख़त्म हो जाएगी ना। कुछ तो दोगे बेनिफिट। ऐसा थोड़ी है कि डिडक्शन, हमें डिडक्शन के बाद 30 देना पड़ रहा है ना। वो जो भी वो जो ATI, ATI-A, ATI-B, ATI, वो सारे डिडक्शन के बाद ही तो हमें 30 देना पड़ रहा है ना। तो चलो आप छोड़ दो, आप कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। हम 22 नहीं कह रहे, 25 सरचार्ज भी लगा लो, 27-28 होगा, कोई बात नहीं। डिडक्शन कितनों को मिल रही है? बहुत कम को मिल रही है, बाकी तो डिडक्शन ले नहीं रहे। अभी सोच रहे हैं, इसलिए अभी ओल्ड रजीम ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन कंपनी का तरीका ढूंढ लिया है कि ओल्ड रजीम आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, नहीं तो 14% टैक्स देना है, और उसका कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होना है। और उस केस में आपको पुराना वाला कैरी फॉरवर्ड भी ख़त्म हो गया। क्लियर हुआ सर? ये मैट का उन्होंने निकाला 206, जिसमें आपको ये दिक्कत आएगी। मैट खत्म एनीवे इन द केस ऑफ ए कंपनी। TCS, ये जरूर मोदी जी ने गुजरात वालों के लिए किया है, क्योंकि गुजरात वाले घूमने बहुत जाते हैं, नहीं जाते। और उसमें क्या था? ओवरसीज पूरे प्रोग्राम में 10%, 5% अप टू 10 लाख, उसके ऊपर कितना था? 20 लाख TCS था ना, नहीं था? ये फेवर मोदी जी ने किया है, उसको उठाकर सिर्फ 2% कर दिया। सिर्फ TCS कितना कटेगा? 2%। जितना मर्जी घूमिए 2% ही है। पहले 10 लाख तक 5% था, 10 के ऊपर खर्च करते थे ओवरसीज टूर प्रोग्राम में तो 20 था। नाउ इट इज़ ओनली, कुछ सोच सकता था? ये वही वाला है जैसे 12 लाख कर दिया इनकम, गुजरातियों के लिए 2% TCS आ गया। सबसे ज़्यादा यहाँ का आया, मैं बता रहा हूँ, ये उनके ही देन है कि भाई हम बहुत घूमने जाते हैं। 20% तो बहुत ज़्यादा है ओवरसीज प्रोग्राम, या 5% भी ज़्यादा है, तो 2% TCS होगा। लेकिन उधर क्या किया है? अगर आपका अल्कोहलिक लिकर है, यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ती ना, TCS 1% है, वो 2 कर दिया है। टेंडू लीव्स है, 5 का 2 कर दिया है। स्क्रैप है, 1 का 2 कर दिया है, उसका भी 2 कर दिया है। मिनरल्स हैं, 1 का 2 कर दिया, वहां बढ़ा दिया है, लेकिन सिर्फ टेंडू लीव का 2% कर दिया। अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, लोन लेके जा रहे हैं, तो पहले से हट गया है TCS, हटाया नहीं। अब मेडिकल के लिए जा रहे हैं
या अपना उसके लिए जा रहे हैं एजुकेशन के लिए अपने पैसे खर्च करके लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में, तो 5 के बदले 2 हो गया, उसको भी 2 कर दिया, टीसीएस कम कर दिया। लेकिन बाकी केसेस में वही 20 है, नो चेंज। ये टीसीएस का इशू था जो मैंने आपको बताया। ये टीसीएस भी आपका कम कर दिया है इस काम के लिए। अब क्या रह गया? नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, था ना, अब थोड़ा सा आराम हो गया। अगर नए साल में, इस साल नहीं, अगर आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आया है और अब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक पे कर दे, तो हम आपको ये डिडक्शन दे देंगे। रुकिए, एम्प्लॉयर में लिखा ड्यू डेट तक करेंगे तो दे देंगे, नहीं तो तब देंगे जब आप पे करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। नो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक पे करिए तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बहुत रिलीफ है सर। 15 दिन थे, अब 15 दिन के आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न आ गया, जो कम से कम 31 अगस्त या 31 अक्टूबर होगा नहीं होगा, तो उस केस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जमा करा दीजिए। पहले इनकम मान ली है, अब जमा करा दो, हम खर्चा दे देंगे। लेकिन 263(1) के बाद कराएंगे तो कहीं खर्चा नहीं मिला। पहले तो 15 दिन के बाद खर्चा नहीं मिलता था, अब कम से कम इतने महीनों के बाद है तो खर्चा नहीं मिला। तो अच्छा प्रपोजल है 29(1)(e), यही ना सर? यही है। मेरे ख्याल मैंने काफ़ी कुछ कर दिया। अब जो मैंने ब्लैक मनी वाला किया नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही नहीं पढ़ा, तो करूँ क्या? मैं सोया ही नहीं कितने दिन से। पहले दिन तो वहाँ पर आपका वो था, प्रोग्राम चल रहा था वो गोफा में, और हमें 7 बजे तो पढ़ने नहीं दिया, तो लेक्चर दिया। घर 10 बजे पहुँचा, कितनी देर पढ़ लूँ? फिर कल 6 लेक्चर दिए, रात को यहाँ पर आ गया, 3 घंटे रात को सोया हूँ, और सब ये याद किया है आपका। क्योंकि ना कागज़ रखा है, दिखाना नहीं है आपने, कागज़ रखा है, दिखाया नहीं मैंने, क्योंकि कैसे होगा, इज्जत खराब हो जाएगी कागज़ अगर मैंने दे दिया। इसलिए ये इन टोटल मैंने आपको अमेंडमेंट बताई। जो नए वाली अमेंडमेंट है वो अभी 3-4 और है, मैं भूल गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम, 3-4 और है, बड़ी भूल गया सर। मोटर एक्सीडेंट क्लेम का जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल है, और उसके ऊपर टीडीएस भी कटता है अगर उसका 20,000 से ऊपर हो। मोटर एक्सीडेंट क्लेम, कई लोग फेवर में थे, कई अगेंस्ट थे कि ये क्या हुआ, पहले ही मरा हुआ आदमी है और इंटरेस्ट मिल भी गया और उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो। लो जी, मान लिया। इंटरेस्ट ऑन मोटर एक्सीडेंट क्लेम अगर इंडिविजुअल को मिला है या उसके लीगल एयर को मिला है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। जब एग्जेम्प्ट ही हो गया तो फिर टीडीएस किस बात का? लेकिन अदर देन इंडिविजुअल को मिला है, लीगल एयर को मिला है, तो वही रूल रहेगा, टैक्सेबल होगा और इन टीडीएस भी कटेगा। ये क्लियर हो गया सर? मोटर एक्सीडेंट क्लेम, क्लेम तो माफ है, इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम, इंटरेस्ट पहले टैक्सेबल था। वो कहता मरा हुआ तो आदमी बेचारा, उसके पे भी टैक्स लगा रहे हो, तो इंटरेस्ट को माफ कर दिया और टीडीएस भी हटाया, ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड द लीगल एयर ऑफ द इंडिविजुअल। चलिए सर, आपको फॉरेन वाले से, नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी खरीदनी तो आपको टैन नंबर लेना पड़ता है, लेना ही पड़ेगा, चाहे आप टैन है तो बात अलग है, कईयों के पास टैन थोड़ी है, तो वो टैन नंबर लेना पड़ता है, उसके बगैर आप पैसा टीडीएस जमा करा सकते हैं। ये तो बड़ा काम खराब है। उन्होंने कहा रुको 1/10/2026 के बाद आपको टैन लेने की जरूरत नहीं है, पैन बेस पे ही जमा करा देना, जैसे रेजिडेंट का कराते हैं। रेट नहीं कम हुआ, रेट वही है, लेकिन अब आप 1/10/26 के बाद टैन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा पैन बेस जमा करा दीजिए और आपको हम अलग कर देंगे। क्लियर हुआ सर? अब 15G और 15H हर कंपनी मांगती है, लिखती है, हम लोग तो हैं, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हम तो उसका जवाब नहीं देते क्योंकि हमारे पे तो टैक्स लगता ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे छोटे हैं जिनका उनका टैक्स नहीं है इतना और वो डिविडेंड आ रहा है, तो डिविडेंड वाले पूछते हैं कि आपने अगर टीडीएस कटेगा, नहीं तो 15G 15H सबमिट कीजिए, जैसे बैंक मांगता है। मैं बैंक नहीं कह रहा यहाँ पर इसके, या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ भी आ रहा है, वो भी कहते हैं 15G 15H सबमिट कीजिए, या म्यूचुअल फंड से आ रहा है, वो भी कहते हैं 15G 15H सबमिट कीजिए, नहीं तो आपका टीडीएस कटेगा। वो तो सबको पता है।
अब 15G 15H हमें पहले हर आदमी को बेचना पड़ता है। अगर 20 जगह पे है तो 20 वालों को देंगे, म्यूचुअल फंड में है तो म्यूचुअल फंड को देंगे कि मेरा ना काटिए। मैंने कहा रुको, 1/4/2027 के बाद आपको ये जो है ना इंफॉर्मेशन 15G 15H डिपॉजिटरी को दे दो, वो अपने आप भेजेगा। अब एक ही जगह दे दो, डिपॉजिटरी विल इन टर्न क्वार्टरली सेंड द डिटेल्स टू whom? टू द वेरियस कंपनीज और म्यूचुअल फंड। आसान हो गया, लेकिन वो तो बहुत गरीब छोटे आदमियों का है, लेकिन हुआ डिपॉजिटरी को दे दिए। कब से? 1 साल अभी लेना है, 1/4/2027 के बाद अगर आप देंगे हम कुछ नहीं। लेकिन ये 15G 15H रहेगा नहीं, नंबर बदलेगा। अभी क्या करते, लिखना तो पड़ता है 15G 15H, लेकिन अब 50G तो रहना ही नहीं है, नंबर तो फॉर्म का बदलेगा ही। तो इसलिए अब क्या लिखते हैं, नया फॉर्म अभी आया नहीं, तो पुराने के बारे में समझ तो आए कि ये 15G 15H वाला जो केस है वो ये होगा। उस वक्त जब देना पड़ेगा तो हो सकता है 15G नहीं हो, 2400 2500, मुझे क्या पता। क्लियर है? अब लोअर रेट का सर्टिफिकेट मांगते हैं या नील रेट का सर्टिफिकेट मांगते हैं, TDS और TCS का मांगते हैं ना, फॉर्म 13 भरते हैं। ये फिजिकल है, आपको भरना पड़ता है और फिजिकल है। अब आपको ऑप्शन दे दी कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल कर सकते हैं, ऑप्शन है, दोनों पर्सनल है। वो आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करिए, फिजिकल करिए, या आपकी चॉइस है। हम नहीं सर फिजिकल है, अभी उन्होंने करा नहीं था, अब किया जाके, ये दोनों फिजिकल भी और वो भी वो कर दिया है। अब डिसेबिलिटी है डिफेंस वालों की, उसकी अभी एग्जेम्पशन दिखाई नहीं थी, उसकी भी एग्जेम्पशन दे दी। अगर डिसेबिलिटी है और उसको पेंशन मिलती है तो डिसेबिलिटी वाले को जो पेंशन मिलेगी या और कोई फंड मिलेगा वो अमाउंट उसका एक्सेप्ट होगा। आपको याद है रेफलार एक्ट, राइट टू फेयर कंपनसेशन ऑफ लैंड, जो कंपल्सरी एक्ट जो माफ है 96 सेक्शन में, यहाँ पे लिखा नहीं था माफ है इनकम टैक्स में, अब इनकम टैक्स में डाल दिया कि वो जो कंपनसेशन होगा कंपल्सरी एक्विजिशन का वो भी माफ होगा। ठीक करा, क्योंकि वहाँ से रेफरेंस आ रहा था, इधर से उन्होंने कर दिया है। तो ये कुछ ये चीज़ें भी थी जो एग्जेम्पशन मैंने कहा, और कुछ नॉन रेजिडेंट को भी एग्जेम्पशन दी है, और ये बस यही था सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट। Requesting all, sir has given so much time to, so please sit for 5 minutes at least. I know you all are in a hurry, but requesting all to please give more 5 minutes, please. If anyone have any question, yes, please. Second row. विद द अनरजिस्टर्ड हो जाए, मैंने रजिस्टर्ड विद रजिस्टर हो जाए, NPO में बोला, तो उस केस में एग्जिट टैक्स नहीं लगेगा। एग्जिट टैक्स मीन्स वो जो वो तो 115 TD होता था वो नहीं लगेगा। रजिस्टर मर्ज विद द अनदर रजिस्टर्ड, सेम ऑब्जेक्ट्स लिखा है, दैट शुड बी सेम ऑब्जेक्ट, तो हम नहीं लगाएंगे NPO। ये वाला सेक्शन डाला है उन्होंने, डाला है सर। रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर देते थे, वो वाला भी कम कर दिया। अगर एग्जेम्पशन वाले से यहाँ लाएं तो रजिस्ट्रेशन कई बार कहते थे आप रजिस्टर कराओ, तो रजिस्टर कराना, अगर जरूरत पड़ेगी तो रजिस्टर कराइए, नहीं तो कैंसिल नहीं हो। हाँ वो भूल गया, चलिए 2 रह गए, यू आर राइट। वो इस साल नहीं है, आपने तो सवाल पूछ रही होता है, मैं भूल गया था। 428 क्लॉज C, 428 क्लॉज C, अभी तक टैक्स ऑडिट की क्या पेनल्टी है? 0.5% और 1,50,000 विच एवर इज लेस। अब सुन लीजिए, अब ये फी हो गई है, अगले साल से फी होगी जो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। किसको देनी पड़ेगी? आपके ऑडिटी को देनी पड़ेगी। कितनी? अगर तो 1 महीना डिले करेंगे, 30 सितंबर लास्ट डेट है, अगर आपने 31 अक्टूबर रिटर्न के साथ दी तो 50,000 रुपये कंपलसरी। अगर रिटर्न के बाद दी तो 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, सॉरी 50 बोल दिया, 75,000 रुपये। वो 50 उसके लिए, TP के लिए कितना? 75,000 रुपये। अगर आप 1 महीना डिले करेंगे और 1 महीना से ज़्यादा करेंगे तो 1.5 लाख रुपया। अब कोई लिमिट नहीं है, विच एवर लोअर, ये और कंपलसरी देनी पड़ेगी आपको ऑडिट फी उसका लिए, अगर आप डिले करेंगे। 31, और वो TP वाली है तो नवंबर है, तो रिटर्न कब फाइल करनी होती है? 31 अक्टूबर। अगर आप नवंबर में करेंगे
तो 75 दीजिए, नवंबर के बाद करेंगे तो 1.5 लाख दीजिए। और एक और टीपी की रिपोर्ट भी तो होती है, टीपी की रिपोर्ट में भी 1 लाख का था पेनल्टी। अब कह दिया टीपी रिपोर्ट अगर 1 महीना डिले करके फाइल करेंगे तो 50,000 और 1 महीने के बाद करेंगे तो 1 लाख। पर ये क्या बन गया? फीस। अब पेनल्टी नहीं है, फीस। सब कुछ देना ही पड़ेगा, क्योंकि फीस जो होती है वो पहले टैक्स से एडजस्ट होती है और बाकी टैक्स माना जाता है। समझ आ गया सर? यू विल हैव टू पे द फी। ये 2 रह गए थे, सॉरी। यस सर, एक फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर का कुछ अमेंडमेंट है। सर मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिला। ब्लैक मनी की वो स्कीम आई है कि आप 6 महीने का विंडो दी है कि अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उसमें कई तरह है, आप यहाँ पर रेजिडेंट है और आपने वहाँ एसेट ले रखी है और वो सोर्स क्लियर है, तो आप 1 लाख रुपया फीस दीजिए और भर दीजिए 6 महीने के अंदर। अगर बाहर खरीदा था और यहाँ रेजिडेंट है, उसका सोर्स क्लियर होता है, तब रेजिडेंट था यहाँ, उसका सोर्स क्लियर है तो भी 1 लाख है। लेकिन अदरवाइज अगर आपका दूसरा है तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वो टैक्स 30% देना पड़ेगा और साथ में पेनल्टी भी 30%, प्रोवाइडेड 5 करोड़ से ऊपर का नहीं। सो थोड़ा सा मैंने देखा, इन डिटेल नहीं देखा, और जब तक इन डिटेल ना देख लो मेरे बस का नहीं है पूरी तरह आपको क्लियर करना। थैंक यू सर। हाँ जी, बताया ना, एक तो ही तो चेंज है। एक रजिस्ट्रेशन होगा तो कैंसिल नहीं होगा, और दूसरा यही मर्जर जो होगा अगर सेम है ऑब्जेक्ट तो कोई भी एग्जिट टैक्स नहीं लगेगा। यही है। वो तो इनके इंटरेस्ट का है, आपके इंटरेस्ट का कहाँ से हो गया? चलिए चलिए आगे बोलिए। सर इस बार जो बहुत सारे अमेंडमेंट है ना, उसमें 1 मार्च 2026 लिखा हुआ है, उसका क्या लॉजिक थोड़ा? अमेंडमेंट कब से आती थी? विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 26-27 फर्स्ट वाला। करेक्ट। लेकिन 26-27 की अमेंडमेंट तो आ रही हैं करेक्ट। नए एक्ट में, इसलिए इन्होंने मार्च लिख दिया ताकि इस साल करी है तो अगले साल के लिए। करेक्ट, ठीक है। प्राइट टू सब, ये बड़ी क्लेवर वे में की है। जितने भी ओल्ड एक्ट में करा है, जरा देखिए 1 मार्च 26 से, 1 अप्रैल से नहीं है। 1 अप्रैल वाला तो वहाँ टैक्स ईयर आ गया है, तो इसलिए कंफ्यूजन होता। इन्होंने 1 मार्च किया है, लेकिन मार्च के बाद है तो अगले साल के लिए ना, यही लिखा है सर। 1 मार्च 26 है, मार्च 1-26 क्लियर किया। वेरी राइट, पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। थैंक यू। 2 तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पढ़े लिखे और पढ़ चुके हैं जो। चलिए चलो, बिल्कुल ठीक है, ये बात आपने बहुत अच्छी तरह नोट की है, क्लियर है। और आप देख लीजिए सारे मार्च 1 से। चलिए सर आगे बोलिए। सर पेनाल्टी असेसमेंट का जो साइमल्टेनियस ऑर्डर पास करना है उसके बारे में थोड़ा। सर वो तो लॉ ये आ रहा है कि पहले पेनल्टी इनिशिएट करके ऑर्डर पास किया जाता था, है ना, इनिशिएट कर दो और बाद में पेनल्टी करो। कहता है नहीं, पेनल्टी का ऑर्डर भी साथ में पास करो, अपॉर्चुनिटी भी लेकिन नहीं, पेमेंट तब देनी पड़ेगी जब फाइनल डिसीजन सीआईटी का है। अपॉर्चुनिटी भी नहीं देने की एसएससी को। सर अभी तो बना है, आप लोग वहाँ रेफर करिए और आपके तो घर का आदमी है, हो ही जाएगा फिर तो अपॉर्चुनिटी। करिए, अभी तो यही है जो आपने बोला, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी गई? क्या अपॉर्चुनिटी 143(2) में दे दी जाती तो ये साथ में पेनल्टी की भी देंगे? कौन कह रहा है अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई? वैसे पूछो मेरे से। When you are being assessed, are you not giving an opportunity or faceless में of being heard? दी जाती है ना, तो पेनल्टी की भी वही है, being heard। तो अपॉर्चुनिटी तो दी है, किसने कहा नहीं दी है? वो अपॉर्चुनिटी बाद में इनिशिएट करना था, तो अपॉर्चुनिटी दो। जहाँ पर दोनों चीज़ें इकट्ठी करनी है तो अपॉर्चुनिटी तो दे ही रहे हैं हम तो आपको, तो इसलिए वो आएगा नहीं। मैं वैसे कह दिया, नो नीड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज नो असेसमेंट इज डन अंडर 143(3) विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रोवाइडेड यू आस्क फॉर इट। एंड इफ यू आर नॉट आस्किंग तो मैं क्या कर सकता हूँ? यू हैव टू आस्क फॉर इट। पहले बात और थी तो आप दे दीजिए, तो हो जाएगा। अभी कुछ नहीं आया, मैं भी देखता रह गया, क्योंकि वो आएगा तो वैल्यूएशन भी आएगा, आपको बताऊं वो अभी तक आया नहीं है। बोला जरूर था मैडम ने, लेकिन है नहीं। अकाउंटेंट की डेफिनेशन जो 515(3)(b) में है उसमें कुछ नहीं है। और अकाउंटेंट की डेफिनेशन वैसे तो 2(1) में है, लिखा अकाउंटेंट मीन्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 515(3)(b),
और उसमें कोई चेंज नहीं है, अभी तक चेंज नहीं है। सर हाँ, सर अपने टैक्स ऑडिट की सर जो पेनल्टी है, तो सर 2 से 10 करोड़ के बीच में किसी का टर्नओवर हो और अगर सर वो विदाउट टैक्स ऑडिट 5% ऑफ कैश की लिमिट दिखा के रिटर्न फाइल कर दे, अब उसको बाद में नोटिस आती है कि ये बजट से तो कलेक्टेड नहीं है ना, आराम से बाद में करना। कॉर्पोरेट वो तो भी आएंगी डिटेल्स, एमएसएमई की जो है वो भी डिटेल बातें तो बहुत करी जाती हैं, लेकिन आस्ता आस्ता ही डिटेल आएगी ना। इस बारे में तो आ गई, बजट में नहीं है वो, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द बजट, बट वी विल हैव समथिंग ऑफ दैट नेचर। सर 143(2) की स्क्रूटिनी में अगर आएगा उसके अपडेटेड रिटर्न, उसमें तो फाइल नहीं कर सकते ना नहीं फिर? कर सकते, अभी तक तो बोला मैंने कि ठीक। भैया वो कह रहे हैं कि अभी असेसमेंट हुई नहीं, तो क्या टैक्स कौन सा दोगे? आप बताओ टैक्स कौन सा दोगे? टैक्स का 25% देना है ना। जब आपकी असेसमेंट हुई तो टैक्स का 25% कहाँ से निकालेंगे? 148 में टैक्स लग चुका है 143(3) का, तभी तो दे रहे हो, इसलिए उन्होंने नहीं किया। ओके सर। ये कारण है। किसका जी? सर लिखा है ओनली, और ओनली का मतलब है चाहे आपने बाहर से खरीदे हो आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगा। नो नो, कोई ग्रैंडफादरिंग नहीं है, देयर इज नो ग्रैंडफादरिंग कि भैया जो ऑलरेडी खरीद लिए वो आप माफ हैं, आगे से नहीं होगा जी, नहीं। देयर इज एब्सोल्युटली नो ग्रैंडफादरिंग, यू विल हैव टू पे द टैक्स इफ यू बॉट इट। व्हेन यू रिडीम करोगे उसमें 12.5% देना पड़ेगा। ग्रैंडफादरिंग करी नहीं है उन्होंने, डिमांड करी है शायद। देखिए पोस्ट बजट मेमोरेंडम तो जाता है, इंस्टीट्यूट भी भेजेगा, क्यों जी? जब पोस्ट बजट मेमोरेंडम भेजेगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, और क्या पता, आप समझिए मैंने क्या कहा, क्या पता, भगवान करे तो हो जाए। चलिए, हेलो। हाँ 10% कर दिया और बहुत फायदा कर दिया। वो 10% वो था, ये 10% होगा टैक्स है, पर वो अभी कहाँ इधर, वो तो आएगा ना, एक्ट में थोड़ी आएगा, वो भी तो सर्कुलर वो उसका है, तो इट विल कम, दे हैव प्रॉमिस्ड, बट इट डज नॉट मीन जो 20% का है एक्ट में लिखा है कहीं 20%, वो तो सर्कुलर से आया था। आपका 10% करेंगे, लेट अस सी व्हेन इट कम्स, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। अभी कुछ आया नहीं है, ठीक कह रहे। हेलो सर, अगर किसी कंपनी को अभी 80 IA मिल रहा है, अभी उसके 4 साल बाकी है 80 IA के, अब अगर वो न्यू में स्विच कर, जो मेट का प्रोविज़न है उसमें बोल दिया कि अब से मेट फाइनल टैक्स है, अगर वो कंपनी 4 साल बाद मेट से न्यू में स्विच करे, चला गया कैरी फॉरवर्ड, और आगे से 4 साल 14% देना ही पड़ेगा, सब चला जाएगा, मतलब कैरी देना फॉरवर्ड। ही पड़ेगा 14% अगर कंपनी है। यस सर, कंपनी है। हाँ, तो वही AMT की बात नहीं कर रहा, कंपनी। यस सर, कंपनी है। यस, दे विल हैव टू गिव ऑल दोस 4 year 14%, और पिछला जो कैरी फॉरवर्ड खत्म, दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द मैट, बट बिकॉज ऑफ सर्टन वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ सर्टन पर्सन, दे हैव सेड काइंडली शिफ्ट टू न्यू regime, we will give you the benefit to the extent of 25% the tax payable. Yes sir, and in the same way the tax holiday given to sales companies, हाँ जी, टैक्स हॉलीडे जो था जिसमें 0% वाली बात हुई थी, मतलब उसमें 14% कंपलसरी हो गया अब। टैक्स हॉलिडे में क्या था सर? जो सेल्स की कंपनीज थी जिसके कुछ बेनिफिट्स थे जो न्यू रिजीम में नहीं मिल रहे सर? हैं। टैक्स हॉलिडे तो सबसे खत्म करके तभी तो ओल्ड रिजीम का न्यू रिजीम लाए हैं ना। Yes, तो वो लोग जो कह रहा है टैक्स हॉलिडे लेना है, उसको बेनिफिशियल है तो चला जाए। बेनिफिशियल में तो यही है ना कि मिनिमम 15 तो देगा, पहले Yes, 15 दे रहा था और बाकी कैरी फॉरवर्ड कर रहा था। Yes, और जब प्रॉफिट होगा तो 15 तो देना ही पड़ेगा, बाकी क्रेडिट ले लो, यही था ना। Yes, sir. वो अभी भी है, लेकिन अब बंद कर दिया। न्यू रिजीम में जाइए और क्रेडिट ले लो, ओल्ड रिजीम का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। Let's have a big round of applause for Girish Ahuja, sir. Respected sir, you guided us in a very easy language, in an easy manner, and also with a practical example. Sir, even you gave the time for query solving of all the members. Sir, Ahmedabad branch is always honored to welcome you at the branch, and it's your kindness that
you give us your appointment on the second day of the budget and having a busy schedule of 6 lectures in a day. So again, I request everyone to have a big round of applause for sir. Also, I thank respected CCM from Ahmedabad, C. Purushottam Khandelwal sir, and all the committee members on the dais and off the dais. Thank you all the members for attending the session.